Hi. Hi, ma'am. I am Kanchan. Hi, Kanchan ji. You are okay. Kanchan ji, आपने किस login ID से login किया है? Ma'am, maybe it's Tanishka or Kashvi. Both are my kids. Okay, so you have actually done it for both the kids. Yeah, ma'am. Okay. I think there was some confusion probably, Kanchan ji. Kanchan ji, आपने ही login करना था. बच्चों के लिए नहीं है ये, आपके लिए है. ओके मैम. मैं दूसरी आईडी से ऑन करती हूँ और मेरे हस्बैंड बात करेंगे फिर. ठीक है मैम? Sure. Okay. Okay. Bye. Hi, Divya. Hi, Nikita. Okay, there's somebody, Blue Boy Gaming. Can we have your real name, please? Hi, Nikita. Can you please tell us about yourself? Hi. I'm from Delhi and I have two kids. Okay. One is 5 years old and the other one is 8 years old. Nice. Very nice. All right. So let's just have some, knowledgeable Good session. learning. Yes. Yeah. Okay. Galaxy M30 से किसने login किया है? Can you please rename yourself? And Blue Boy Gaming also. Hi, Garima. Welcome. Hello, Ritu ma'am. Hi Kaveri, I'm so sorry. I'm in a low network area, मैम so आपकी I पिक्चर can't नहीं on दिख my रही है. video. No issues, Garima. आशा जी, आपका इंटरनेट काफी I think low उस पे चल रहा है. Probably. आशा जी, आप एक बार ही री-लॉगिन करिए प्लीज, लॉग आउट करके. जी. गया. हम लोग क्यों आए? अदम, चल अपनी सीक्रेट जगह पे चल. अपनी सीक्रेट जगह पे चल. हाँ भाई मेरे को भी आ रही. Okay, so we are as yet how many people here? We still have a few more to join in. Okay. We do have people joining in. Hi, Divya. Hello. Okay. Hi, Sonia. How are you? All good. How many of us are there? We are expecting 18 people to join us today, apart from me and our coach, sir. Okay. Yeah, we'll just give 2 more minutes and Yeah, then sure. we'll start. Okay. Okay. Hi, Kanika. Hi. So, Kanika, and everyone else, I would really appreciate in case you guys can turn on your cameras right now and you can keep it off while the workshop. Let's get to know all of us. Huh? Okay, and we are expecting who else? Just give me a second. So I'll just give a call to those people who have yet not joined, probably. Hi, Sonal. So, Dr. Veeru has not joined as yet. Okay.
He is here. Yeah, hi everyone. Sonal here. Hi, Sonal. Hello, Dr. Viru. There's somebody from Galaxy C7 Pro. Can you please rename yourself? We would like to have your name here. And Blue Boy Gaming also. वन थ्री फाइव नहीं है 475 पता नहीं मैं मीटिंग है किसकी क्लास रेनू के Monday. Okay, so am I audible enough to everyone? Am I audible? Great. So we'll start for today, and because it is already 4:04. So let's just start for today. So quickly, a very, very, very happy and curious evening to everyone here. We at Curigans, we are really happy that you guys could make time. You showed trust in us. You took out time from your busy schedules to join us today. My name is Kaveri. I'm founder of Curigans. And what is Curigans? So Curigans brings you a variety of workshops at truly affordable prices, which will which will make you take away something that you would end up using in your life. It is not just like for fun, but it would be something which you would learn and use it in your life. So today it is about knowing your kid. Okay, how is it that you can know about your kid? So माने या ना माने, अपने बच्चों के बारे में तो हम सभी जानना चाहते हैं, पर ये करना कितना डिफिकल्ट होता है इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती हूँ मैं. Now, handwriting is one thing, which is one very genuine and easy way to go through or maybe get a window to your kid's psyche. And without taking much of our time, let me take a minute to introduce you to Mr. Shri Prakash Jaluka, our expert coach for today. He has been into this field from more than almost 7-8 years now. He has done a lot of workshops, has served thousands of people, has worked with a lot of different, I would say, institutions and organizations in the same field, in graphology, in memory enhancing for kids, and even making kids better humans for tomorrow. So here it is. I would not take much more time, sir. You can take over. Hello, namaste. Yeah, hello sir. So thank you so much, Kaveri, for introducing me. And hope everyone is getting my voice clear. Am I audible to everyone?
और हम लोग का जो है ना ये प्रोग्राम के अंदर विल यूज मोर ऑफ द चैट बॉक्स, तो आपको अपने आप को म्यूट पे रखना है, विल यूज मोर ऑफ द चैट बॉक्स, और अगर कहीं कुछ लगा तो हम क्वेश्चन आंसर्स जो सेशंस है वो लास्ट में रखेंगे। यस कावेरी? Perfect, sir. Goes around. तो जो भी आपको जब भी चलेगा, मतलब जैसे जैसे सेशन चलते जाएगा आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी, बिकॉज यू ऑल आर क्यूरिगन्स, सो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी। बस आई रिक्वेस्ट यू टू होल्ड योर नर्व्स, ताकि हम कंटिन्यू फ्लो में चलते रहें, और एंड ऑफ द सेशन विल हैव सब क्वेश्चन आंसर सेशंस जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं, ताकि आपको इस नॉलेज जो मैंने किया है मुझे पता चला कि जो भी मैंने शेयर किया वो आप तक पहुंचा है। वन मोर थिंग विच आई विल ऐड इज कि आज आपको बड़े ध्यान से सुनना है और आपको पूरा एकदम फोकस रहना है, बिकॉज लास्ट में हम आपके लिए और कुछ स्पेशल प्राइजेस भी देने वाले हैं, लाइक विल हैव सम फ्रीबीज। तो आज जो भी पेरेंट्स लास्ट तक सुनेंगे उनको मैं एक स्पेशल पैटर्न देने वाला हूँ। रीजन कि एक तो लॉकडाउन, ऊपर से बच्चे घर पे, तो बहुत सारा पेरेंट्स को क्या हो रहा होगा, स्ट्रेस हो रहा होगा। यस और नो? चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस और नो। Secondly, I would really respect if every one of us can put our names there. We do see, we still have, tab names from people, Galaxy C7 Pro and Blue Boy Gaming. Can we have your names, please? Yes. So, ये जो है, तो मैं आज आपको एक ऐसा पैटर्न देने वाला हूँ, तो वो पैटर्न अगर आप प्रैक्टिस करते हो एक दिन में सुबह में 10 मिनट या ऐसे, तो आपका जो भी जॉब का या पर्सनल लाइफ का या बहुत सारे आपके लाइफ के जो भी स्ट्रेस है, उन स्ट्रेस से आप धीरे 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 रिलीव हो जाएंगे। एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है बाद में जब आप उसको ट्राई करेंगे। आई पर्सनली एक्सपीरियंस दिस अ लॉट, but this is only for those who will stay till last. हाँ, stay till last, yes, है ना, बिकॉज कावेरी इज लाइक बोलते हैं ना, मॉनिटर भी है, हेडमास्टर भी है, तो वो दोनों चीजों का ध्यान रखे कावेरी के कौन बीच में एब्सेंट होता है, या बीच में अगर मैंने कुछ पूछा और कौन एब्सेंट गायब है, तो वो सारी चीजें कावेरी देख लेंगी। यस कावेरी? सो गुड टू गो? Good to go. Yes. So myself, Sri Prakash Jaluka, I'm a life coach and graphologist. I help people to get rid of many life issues. And as Kaveri told, कि I'm a memory coach. Also, I'm a national record holder in that. मैंने memory में national record hold दिया है. I got many recognitions by Lions Club, Rotary Club, Brahma Parishad, and like this. Bharat Vikas Parishad, and many organizations. So this is something about me. बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, because we have very limited time, और क्योंकि आप लोगों को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीजें देनी है. So I welcome you all the parents. First of all, we'll understand what is the graphology. आपने देखा होगा ग्राफो पेरेंटिंग, तो मैं बहुत क्विकली जाऊंगा इस पैटर्न पे, because I want to give you something which is very valuable. तो आप लोगों को बड़ा ध्यान देना है. Then this is what is this amazing science of graphology. It's art of decoding, handwriting, signature and drawing analysis. तो यहाँ पे आज हम लोग ड्राइंग की बात नहीं करेंगे. ड्राइंग का हमारा अलग से सेशन होता है, एंड मेरा कमिंग वीक में एक वर्कशॉप भी होने वाला है ड्राइंग का, तो वहाँ पे हम लोग ड्राइंग की बात नहीं करेंगे. We'll talk something about handwriting and signature. और आज का जो हमारा पर्सपेक्टिव है, बिकॉज जैसे हमारा नाम है कि ग्राफो पेरेंटिंग, तो ये एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स के या चिल्ड्रंस के नाम से ही बनाने वाला था, बट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी है, तो मैं सोचा क्यों ना उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाए और उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, इस तरह की चीजें शेयर की जाए. तो ग्राफो पेरेंटिंग के बारे में आज हम शेयर करेंगे, एंड आई एम श्योर कि यू विल एंजॉय इट एंड यू विल लर्न अ लॉट. तो आर यू रेडी? आप लोग एक बार जरा चैट बॉक्स पे लिख देंगे रेडी. So
देयर इज अ सेइंग कि हैंड राइटिंग इज अ ब्रेन राइटिंग। अभी हैंड राइटिंग ब्रेन राइटिंग क्यों है? पहले मैं आपको बता दूं वो ग्राफोलॉजी। तो ग्राफो इज लाइक ग्राफ्स। हम लोग जब भी लिखते हैं तो हम लोग कुछ ग्राफ्स बनाते हैं, एंड लॉजी मीन्स होता है उसका साइंस, शास्त्र। बिकॉज आपने देखा होगा जैसे साइकोलॉजी होता है, बायोलॉजी होता है, जूलॉजी होता है, तो ठीक उसी तरह से ग्राफोलॉजी। अब व्हाई ग्राफोलॉजी? तो ग्राफोलॉजी इज नोन एज अ ब्रेन राइटिंग, हैंड राइटिंग इज योर ब्रेन राइटिंग, बिकॉज देयर इज नथिंग which we can do without our brain's involvement। तो जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमारा ब्रेन भी उतना ही इन्वॉल्व होता है। जब भी हम कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ एक ए भी लिखना शुरू करता हूँ, ए भी लिखता हूँ, तो मुझे पहले उसको इमेजिन करता पड़ता है कि इस तरह से मैं ए लिखूंगा, और तब मेरा ब्रेन सिग्नल देता है, मेरे नर्व्स के जरिए वो हैंड्स तक आते हैं वो सिग्नल, और उसके जरिए फिर मैं लिखता हूँ। तो हैंड तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक्चुअली उसका जो पूरा आता है वो हमारे ब्रेन से। तो वो ब्रेन राइटिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल ब्रेन राइटिंग। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो बट विल डिस्कस बाद में। आज हम सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे बात कर रहे हैं। तो हैंड राइटिंग योर एक्सरे ऑफ योर माइंड। हैंड राइटिंग जो है वो आपके माइंड का एक्सरे है। रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि हम कुछ भी लिखते हैं तो वो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस के हिसाब से ही हम लिखते हैं। स्कूल में अगर आपने देखा होगा, जितने भी टीचर्स रहते हैं उन्होंने बच्चों को एक जैसी बुक देते हैं और एक ही तरीके से लिखना सिखाते हैं, एक ही टीचर होती है और सब लिखते सीखते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद में हम सबकी हैंडराइटिंग चेंज होने लग जाती है। रीजन, वी हैव अ डिफरेंट ब्रेन। हम सबका ब्रेन अलग होता है, हम सबका थॉट प्रोसेस अलग होता है, दैट्स व्हाई हमारी हैंडराइटिंग भी अलग होती है, राइट? अभी ग्राफोलॉजी, तो ये आपने ग्राफ पढ़ा होगा। ग्राफ हमने स्कूल में, कॉलेजेस में हमने काफी ग्राफ बनाए भी होते हैं, हमने देखे भी होते हैं ग्राफ। तो ग्राफ क्या होता है? इस तरह से अगर बढ़ती हुई चीज होती है तो वो ग्राफ आगे आता है। लेकिन कुछ लोग जो सिग्नेचर करते हैं वो इस तरह का सिग्नेचर करते हैं। वो लोग जाते हैं, एक हैंडराइटिंग को ऊपर तक लेके जाते हैं उस सिग्नेचर को, एंड देन ऑल ऑफ सडन वो लोग बैकस्ट्रोक मार देते हैं, पीछे मार देते हैं। व्हाट डज दैट मीन? ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे गया, और यहाँ पे ऑल ऑफ सडन वो बैक स्ट्रोक मार दिया। यानी हम सक्सेस के बहुत पास तक जाते हैं, फिर अपने आप को वापस खींच लेते हैं, या हमारी मंजिल के पास तक जाते हैं, वहां से अपने आप को खींच लेते हैं। अब अगर इस तरह की चीजें अगर स्टूडेंट्स में है या इस तरह की चीजें आपके बच्चों में है तो उसका क्या असर होता है वो मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा कि आपका जो चाइल्ड है, आपका जो बच्चा है, अगर वो इस तरह की चीजें कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज हुई होगी कि जहाँ पे उसने आगे तक गया और कोई कोई गलती हो जाती है, कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और उससे उसको कोई डांट पड़ जाती है, उसकी वजह से उसे घबराहट होने लग जाती है, एंड देन वो बच्चा आगे तक जाता है और वापस आता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए कहूँ, अगर मैं आप लोगों से ऐसे हाथ मिलाने के लिए हाथ किया है, अगर आपने मेरे पास हाथ मिलाने आया उसके पहले ही मैं वापस इस तरह से खींच लिया, समथिंग लाइक दिस। अब ये होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो लोग साल भर पढ़ाई करेंगे, बट जैसे उसका एग्जाम का तारीख नजदीक आते रहता है, एग्जाम नजदीक आता है, उसे या तो हेल्थ का कुछ चैलेंज होना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसको पेट में गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, या कहीं उसका सर दुखने लग जाएगा। या ये क्यों होता है, ये बीमारी क्यों होने लगती है, कहीं उसको चक्कर आने जैसे शुरू हो जाते हैं, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ही हैज सम फोबिया, कुछ ना कुछ फियर होता है। तो वो जाता है एग्जाम के पास से वापस आ जाता है, एग्जाम हॉल में गए तो वहां पे तबीयत खराब हो जाएगी। और ये जो चीज है, ये रीजन क्या होता है कि कई बार बच्चों को हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, एज अ पेरेंट्स हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, और बच्चों को हम बोलते हैं कि आपको अव्वल ही लाना है, अव्वल ही लाना है, और कई बार वो आपको इतना परसेंटेज लाना ही है। सॉरी, कई जो पेरेंट्स होते हैं वो इस चीज को इतना ज्यादा ये एम्फेसाइज कर देते हैं कि बच्चों में धीरे धीरे वो डर लगने बैठ जाता है। कोई कोई पेरेंट्स बोल देते हैं अगर इतना नहीं आया तो मैं तेरे को घर से निकाल दूंगा या तेरे को हॉस्टल भेज दूंगा। हॉस्टल जाना कोई बुरी बात नहीं है, बट वहां पे उसको
उसकी ग्रोथ के लिए भेजो, ना कि उसको डरा के भेजो। तो इस तरह से जब चीजें करने लग जाते हैं, बच्चा डर जाता है एंड वो डर उसका कहीं ना कहीं उसको फिजिकल एलिमेंट्स में दिखने लग जाता है। दिस इज द सिग्नेचर जहाँ पे वो आगे जा रहा है और वापस खींच रहा है अपने आप। तो सिग्नेचर हमेशा बढ़ते क्रम में होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह से वो बैक स्ट्रोक नहीं आना चाहिए। तो ये एक ग्राफ था, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे एज पर ग्राफ, जो हम ग्राफ बनाते थे, तो उसने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया है, यहाँ तक आगे तक गया और यहाँ से फिर अचानक वापस आ गया। तो ग्राफ कहाँ पे आ गया? नीचे है और वापस है। तो जहां से शुरू किया था उसी के पास में या उससे भी नीचे फिर वो ग्राफ आ गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ग्राफोलॉजी में कि आप कितना ग्राफ कर रहे हो। दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर ग्राफ, आप किस तरह से उस ग्राफ को बना रहे हैं। नाउ विल हैव सम मोर सीरियस थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप जितना ध्यान देंगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप बहुत सारी चीजें लेके जाने वाले हैं, बट एक मैं आपको डिस्क्लेमर बोलता हूँ और एक सावधानी बोल रहा हूँ कि आज मैं कुछ चीजें सिखाऊंगा, वो आपके अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है, बच्चे के उस डेवलपमेंट के लिए है, बट दिस इज नॉट अ फुल कोर्स और आप तो उसमें आप एक्सपर्ट नहीं होंगे। अगर आपको ग्राफोलॉजी में एक्सपर्टीज चाहिए तो उसके लिए पूरे कोर्स वगैरह होते हैं, वो आप हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं उन कोर्सेज के लिए। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। किसी का अनम्यूट है तो उसको म्यूट कर दीजिएगा। Sir, it is only yours now. कुछ आवाज आ रही थी बीच में। हाँ, वो मैंने म्यूट कर दिया है सर। ओके, ठीक है, लेट्स। देखिए, अभी हम देखते हैं कि ग्राफोलॉजी से कर क्या सकते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। आदमी में 3 तरह की पर्सनालिटीज होती है। फर्स्ट जो है, जो हम दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इफ वी आर इनटू बिजनेस, तो हम अपनी दुकान पे जब जाते हैं तो एकदम तैयार होके रेडी होके दिखाते हैं एंड हम वी शो कि वी आर वेरी ऑनेस्ट, वी आर अ वेरी ऑनेस्ट बिजनेसमैन एंड वी विल बी डीलिंग इन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड व्हाट वी शो। यहाँ पे हम अच्छा व्यवहार करते हैं, कस्टमर आ गए तो उनसे बहुत अच्छा हंस के बात करते हैं, झुक के मिलते हैं। दिस ऑल आर व्हाट वी शो। एग्जाम्पल, अगर टीचर है तो वो लोग हमेशा पंक्चुअलिटी दिखाएंगे, अच्छे अपने व्यवहार को दिखाएंगे, अच्छे बिहेवियर को दिखाएंगे, बिकॉज दे वांट टू बी अ रोल मॉडल फॉर देयर स्टूडेंट्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट देन द वन विच थिंक वी आर, दिस इज वेरी डेंजरस पॉइंट। यहाँ पे है ना, आपको बहुत साल कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं ये हूँ, बोलते हैं ना मैं ऐसा ही हूँ, आई एम लाइक दैट ओनली। तो वो जो चीज होती है वो हमारे कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स भी हम लोग पाल लेते हैं, और वो लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से, चाहे वो अच्छे हो या मतलब लाइक कई बार कभी हम अपने आप को छोटा मान लेते हैं या कभी हमारा बहुत बड़ा ईगो मान लेते हैं और हमको लगता है कि हम वैसे ही हैं। बट अल्टीमेटली हमारे न्यूरॉन्स है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वी कैन चेंज अवर बिहेवियर्स, वी कैन अडॉप्ट न्यू बिहेवियर्स। बट सम पीपल आर वेरी रिजिड कि नहीं, मैं तो ऐसा ही रहने वाला हूँ। तो दिस इज वेरी डेंजरस थिंग जो हमको काम करना चाहिए जिसके ऊपर। एंड थर्ड थिंग इज द वन विच वी एक्चुअली आर, द वन विच इज वी एक्चुअली आर। ये क्या है? ये कई बार हमको पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या क्या टैलेंट छुपे हुए हैं या क्या क्या ऐसी चीजें होती है। बहुत सारे देखो होगा आपने, टीचर्स रहते हैं बट दे आर वेरी गुड सिंगर, दो they are a teacher but they are very good singer. There are many, I know few of the bankers, they are very good actors. वो लोग जब प्ले करते हैं स्टेज पे देखा उनको बहुत एक्टर, बट क्योंकि उन्होंने जॉब बैंकर का बैंक किया तो वो बैंक में जॉब किया तो वो बैंकर बन के रह गए। बट जब उनका टैलेंट देखा गया तो दे आर फैंटास्टिक एक्टर्स। तो इस तरह की चीज होती है। तो वन विच वी एक्चुअली आर, देयर आर सम पीपल who are working in a some clerical job and this kind of job, but they have very good talent of motivating, they have good leadership qualities, they have good qualities of motivating others. तो उनके अंदर वो लीडर छुपा हुआ, उनके अंदर वो ट्रेनर, वो कोच छुपा हुआ होता है, but still they are working on that because they don't know what they actually are. बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी हैंडराइटिंग में दिखती है, आपका थॉट प्रोसेस में दिखता है,
वो सारी चीजें हम इसके जरिए हैंड राइटिंग के जरिए पता कर सकते हैं, राइट? So your handwriting is a faithful echo of your real personality. ये कुछ मैंने आपको बताया हैंडराइटिंग के बारे में, और आप लोगों को मैसेज मिला होगा कि आपको पेन और पेपर रेडी रखना है. तो आर यू रेडी विथ पेन और पेपर? प्लीज मैसेज करिए चैट बॉक्स में, यस, आर यू रेडी विथ दी पेन और पेपर? यस. तो यहाँ पे है ना, आपको अभी क्या करना है, यू हैव टू राइट करीब 7-8 लाइन्स, 7-8 लाइनें अपने बारे में लिखना है और 3 सिग्नेचर कर लेना है. 7-8 लाइन खाली लिखना है, और उसमें स्पेशली आपको ये लिखना है आई एम सो एंड सो, लाइक जैसे हम लोग ये लिखते थे ना माई सेल्फ स्कूल में. तो आई एम सो एंड सो, आई डू दिस, समथिंग अबाउट योर पास्ट, समथिंग अबाउट प्रेजेंट, समथिंग अबाउट फ्यूचर. इस तरह की 3-4 चीजों को लेके एक 7 से 10 सेंटेंस लिखना है. आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स. Okay, so just write 2-3 things, 7-8 lines in next 3 minutes. और जैसे ही हो जाए, हिंदी में लिखना है सर, हिंदी में, हिंदी में, इंग्लिश में आप चाहे जैसे लिखिए. अगर इंग्लिश में लिख सकते हैं तो बेटर है. नहीं सर, मैं हिंदी में. जब भी हो जाए तो आप मैसेज करके मेरे को बता दीजिएगा, डन करके. You have to write something about yourself, as we used to write composition में myself. You have to write sentence starting from I am, like I am Sonia, and I am, मतलब your profession, your past, present or future. You have to write 7-8 things about yourself and signature. सर ये 2-3 मिनट में ले लूं आपसे. Yeah, sure, please. So apart from the freebie that sir has announced by the last, कि लास्ट में जो लास्ट तक रहेगा उसको फ्रीबी मिलेगी. एक बोनस और है जो सर ने मुझे कहा था कि हम we can give it to everyone. So I would be putting in links in the group chat, and you guys have to follow us there and take a picture of the workshop that you are attending right now. Put it on your Instagram stories, share it on your Facebook. Pardon me. Share it on your Facebook. Tag both of us. Tag sir. मैं links दे दूँगी और मुझे tag करिए, Curigans को tag करिए, and share it on your profiles. And that should be a public post. We should be able to see it. And the most 3 creative shares, and they will be getting free analysis of handwriting from sir, which is worth more than 2,000 rupees. Okay, so that is a cool deal. And सबसे 3 creative stories या सबसे 3 creative posts, why not to do that? एक share ही तो करना है. If you have any doubts, anything, you guys can always come back to me. I would be sharing all these details on the group also, on the WhatsApp group that I've added every one of you. And personal queries are also welcome, always. Sir, all over to you. जैसे ही सबका पूरा होता है अब आपकी बारी. Thank you. Very good.
Done? Great. So most of the people have done. So now you have to keep yourself. Don't be judgmental. Huh? Don't be judgmental. कि ऐसा है ऐसा है, because we are sharing few of the things जो है, तो आप उसको कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाएगी, और ये चीज आपके बच्चे में भी हो सकती है, आपके चाइल्ड में भी हो सकती है. तो यू हैव टू बी लाइक, उसको आप अभी अगर बच्चे हैं तो उसको आप ठीक अभी से कर सकते हैं, और आपके अपने हैंडराइटिंग में भी ऐसी कुछ चीजें हैं तो आप उसको धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं. और चेंज नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट यू विल बी अवेयर ऑफ दैट. आप उसका अवेयरनेस आ जाएगा आपको, और उसका अवेयरनेस जब आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें हमारी अवेयरनेस की वजह से ही लाइफ में सही होने शुरू हो जाती है. तो जस्ट रिलैक्स्ड एंड एंजॉय लर्निंग, राइट? Shall we move ahead? I guess, sir, everyone has done. We can. Good. So now it's good to go. Yeah. See, अभी होता क्या है, like because this is specially on parenting, graph of parenting है, तो पहले हमको parenting देखना है. तो हमको बच्चा जब जन्म लेता है वहां से लेके उसके कैरेक्टर बिल्डिंग के एक प्रोसेस को समझना पड़ेगा. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको बहुत 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 ज्यादा इस चीज पे ध्यान देना है. जो लोग नहीं दे रहे हैं तो प्लीज दे दीजिए, प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज ये जो टाइम है 7 साल से मतलब जन्म से लेके 14 साल तक बच्चे का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइक होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्पैन है लाइफ का. कि कभी भी इस चीज को अगर आप जितना ज्यादा फोकस करेंगे, जितना ज्यादा ध्यान देंगे, उतना ही अच्छा जीवन बच्चे का हो सकता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ध्यान दीजिए. मदर फिगर, अभी बच्चा जब 0 to 7 एक्चुअली जब बर्थ होता है तो हमारे अंदर दोनों के गुण होते हैं, मदर एंड फादर. टेक्निकली जो भी चीज होती है, बायोलॉजिकल जो जो चीज होती है, मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट यू नो कि हाउ चाइल्ड का जो बर्थ होता है वो किस तरह से होता है. तो दिस ऑल थिंग्स यू नो, तो आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट. हम लोग कोर्स में उस चीज को काफी डिस्कस भी कर रहे थे, बट ये जो चीज है ये आपको समझना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 0 to 7 years जब बच्चा जब होता है तो वो एवरीथिंग, हर चीज के लिए वो डिपेंडेंट रहता है, वो डिपेंडेंट रहता है. और वो जो चीज होती है उसकी डिपेंडेंसी की जो टाइम रहता है, तो वो जो टाइम होता है उसके लिए मदर का जो बोलते हैं ना कुकून है, कंफर्ट है, वो बहुत जरूरी होता है. बिकॉज मदर फिगर, अब नॉट मदर फिगर इसीलिए लिखा है कि कभी कभी क्या होता है घर में, जैसे अगर जॉइंट फैमिली वगैरह हो तो ग्रैंड मदर्स वगैरह भी रहती है, बुआ रहती है, चाची ताई वगैरह जो भी रहती है, तो वो लोग भी का भी उन पे इम्पैक्ट होता है. तो 0 to 7 years का जो बच्चे रहते हैं उन पे जो फीमेल होता है, फेमिनाइंस होती हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, और वो उनको ही ध्यान रखना पड़ता है. इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो ये होते हैं मतलब प्री प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, या इस तरफ से जो वो चीजें होती है, नर्सरीज वगैरह होती है, वहां पे जो अधिकतर टीचर्स वगैरह होती है वो भी ज्यादातर फीमेल्स होती है. तो ये यहाँ पे फीमेल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. एज अ मदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय उसको बहुत सारी क्या क्या चीज चाहिए होती है, कैरिंग चाहिए होता है, कैरिंग चाहिए होता है. 0 to 7 इज फॉर कैरिंग. माँ बच्चे को हर चीज से बचाती है. और अगर आप देखो तो जब बच्चा जन्म लेता है तो वो खुद की फीडिंग से लेके, मतलब खाने से लेके हर चीज के लिए वो मदर पे डिपेंड रहता है, डिपेंड रहता है. और वो बहुत ज्यादा चीजें मदर करती है. तो अगर इन चीजों को अगर समय पे बच्चा ने नहीं मिला उसको, तो ये उसका जो बोलते हैं ना स्पेस है वो खाली रह जाता है, उसमें इमोशंस नहीं आते हैं उसको, जो क्योंकि मदर के जरिए इमोशंस मिलते हैं, केयरिंग मिलती है, कंफर्ट मिलता है. तो ये सारी चीजों से बच्चा वंचित रह जाता है अगर माँ उसको समय नहीं दे रही है. तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग वर्किंग हैं या जैसे हैं,
प्लीज, या तो अगर घर में कोई ग्रैंड पेरेंट्स है, नानी वगैरह, दादी वगैरह है, ऐसा कोई भी लेडी फिगर जो है, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस पर्टिकुलर एज में। उनको टाइम देना, और हर चीजों को आप बोलते हैं ना, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ मेरे जो पेरेंटिंग वर्कशॉप्स होते हैं उसमें, कि डोंट ट्राई टू रिप्लेस योर प्रेजेंस विथ योर प्रेजेंट्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गिफ्ट देके छुट्टा होने की कोशिश करते हैं, बट योर चाइल्ड रिक्वायर योर टाइम, तो डोंट रिप्लेस योर प्रेजेंस विथ प्रेजेंट्स। ये एक चीज भी आपने अगर आज ले ली, शायद आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप ऐड कर सकेंगे। देन आता है फादर फिगर। अभी व्हाट फादर क्या है? तो फादर बच्चे को तैयार करता है दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए। यहाँ पे माँ क्या थी, अपने आंचल में रखती है, उसको प्यार देती है, उसको हर चीज से बचाती है, हर चीज के लिए उसको एक सुरक्षा देती है, सिक्योरिटी देती है। दिस ऑल आर गिवन बाय मदर और मदर फिगर। बट ये दुनिया में जाना है, उसको जीना है, कुछ मुकाबला करना है, उसको शारीरिक शक्ति चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, तो ये सारी चीजें आती है फादर फिगर से। दुनिया में कैसे बिहेव करना है, इस दुनिया को कैसे आपको टैकल करना है, और जो भी चीजें होती है, एक्शन पार्ट जो है, एक्शन पार्ट है, वो सारा चीजें फादर फिगर से आपको मिलता है। तो फादर फिगर का इस पर्टिकुलर एज में होना बहुत जरूरी है। अब जिन बच्चों को इस उम्र में 7 से 14 के बीच में अगर सही गाइडेंस नहीं मिलता है, तो कई बार ऐसा देखा गया कि दे कीप ऑन स्ट्रगलिंग इन होल लाइफ। रीजन क्या, ये जो है, ये बिल्डिंग बोलते हैं ना, कोई भी इमारत की ऊंचाई कहाँ से पता चलेगी? अगर जब तक कोई इमारत बनी हुई नहीं, आप नहीं देख रहे हो, तो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में उस इमारत की ऊंचाई का अगर पता करना है, तो उसकी आपको गहराई देखनी पड़ेगी, उसका बेस देखना पड़ेगा। तो सेम थिंग, ये जो चीज है, जब नींव लग रही है, उस समय की चीज है। तो अगर इस समय अगर उसको फादर फिगर से गाइड मिलता है, अब फादर मतलब अगर कोई नहीं हो या ऐसे कुछ चीजों भाई क्या हो, तो अगर फादर नहीं है तो ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई अच्छे टीचर्स वगैरह जो होते हैं बच्चों के, दे कैन बी अ फादर फिगर। मतलब कोई भी मेल फिगर होना चाहिए जो उसके लिए आइडियल हो, जो उसको एक्शन पार्ट के लिए मोटिवेट कर सके, प्रमोट कर सके, दिस ऑल थिंग। मैं एक बुक पढ़ रहा था, शायद आप में से कुछ ने पढ़ा, दो दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस ग्राफोलॉजी, स्टिल कि देयर वाज अ बुक कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड। वो फाइनेंस से लेके, पर्सनल फाइनेंस से लेके, बट वो ऑथर ने दो चीजें उसमें लिखी थी कि हिज फादर वाज अ वेरी सिंपल, जो जॉब करते थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन गवर्नमेंट में जॉब करते थे, वो सारी चीजें करते थे। बट उसके फ्रेंड के फादर थे, तो वो जो थे, ही वाज वेरी रिच मैन, वो बिजनेस वगैरह करना सिखाते थे। तो इसीलिए उसने लिखा है एक रिच डैड एंड एक पुअर डैड। तो जो उसके फादर थे उसको उसने पुअर डैड लिखा है, और जो जिसने उसको बिजनेस सिखाया वो रिच डैड है। तो उन्होंने जब उसको गाइड किया, उन्होंने उनको तैयार किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, 7 to 14 ईयर्स, 14 साल तक जो है वो फादर को तैयार करते हैं। ये जो है ना, ये इंटरडिपेंडेंसी का टाइम आ जाता है कि बच्चा करना तो चाहता है अपने आप, लेकिन वो उनके लिए आप पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। एंड देन आफ्टर 14 से जब 21 22 तक जो जाते हैं, वहां पे आता है, वहां पे वो इंडिपेंडेंसी का टाइम आने लगता है। तो कई चीजें फिर वो इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं। फर्स्ट जो है वो जो 0 to 7 है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए इज टोटली डिपेंडेंट, देन इंटरडिपेंडेंट, देन इंडिपेंडेंट। तो ये जो चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जो भी पेरेंट्स है, अगर बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज गिव योर टाइम, योर चाइल्ड रिक्वायर योर टाइम। लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है। सी, क्योंकि ये जो टाइम होती है, लाइक जैसे हम हार्डवेयर लेके आते हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये हार्डवेयर है, मोबाइल है, ये हार्डवेयर है, बट ये चलता किससे है? ये सॉफ्टवेयर से चलता है। तो हमारे भी कुछ थॉट प्रोसेस है, वो हमारे सॉफ्टवेयर है। माइंड जो बोलते हैं, माइंड इज अ सॉफ्टवेयर, ब्रेन इज अ हार्डवेयर, बट माइंड इज अ सॉफ्टवेयर। तो आज अब मैं ब्रेन को अगर
कट करके देखूंगा उसके अंदर मेरे को थॉट्स कहीं दिखेगी नहीं, बट हम जो चलते हैं वो थॉट्स से ही चलते हैं. दिस ऑल आर अवर थॉट प्रोसेस, और थॉट्स आर इनविजिबल एंड इट हैज बीन देखा गया है कि लाइक invisible things are more powerful than visible. Invisible things are more powerful than visible things. तो थॉट्स जो है वो हमारे फिर वर्ड्स बन जाते हैं, है ना. अगर किसी बच्चे को अगर बचपन में कुछ अगर लिमिटिंग बिलीव्स आ गए उसके थॉट प्रोसेस में, तू तो नालायक है, तू तो ऐसा करता है, तू तो वैसा करता है, ये धीरे धीरे वर्ड्स बन जाते हैं. फिर वो क्या बोलने लगा, मैं तो नालायक हूँ, उसके भी वर्ड्स बन जाते हैं. कई बच्चे बोलते हैं ना, कई पेरेंट्स गलती से बोल देते हैं कि तू तो किसी लायक नहीं है, तू कुछ नहीं करेगा, वो देख वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है. ये इन चीजों से बनते तो उसके वर्ड्स में आ जाते हैं, और वर्ड्स में अगर उसके वो आ गए तो फिर वो उसका बिकम एक्शंस, उसके एक्शन भी उसी तरह के होने लग जाते हैं. एक्शन में क्या आएगा कि यार मेरे को तो कुछ ज्यादा होना जाना नहीं है, तो ठीक है जो होता है वो कर लेंगे, जो देखेंगे एग्जाम में करना है या करना है, बिकॉज वैसे भी मेरा कुछ ज्यादा तो होने. रीजन बिहाइंड दैट इज आप जो है एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, यू आर अ सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी इन हिज लाइफ, यू आर अ रोल मॉडल. और आपने जो बोल दिया उसके लिए वो बहुत एकदम होता है ना, ब्रह्म वचन हो जाते हैं, लोहे की लकीर हो जाती है कहीं कहीं. तो आप उनको कोई भी ऐसे शब्द न दें, ऐसे कोई बिलीफ न दें, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस मत दें कि वो आगे वाले टाइम में उसका एक्शन को इम्पैक्ट करता है. और जब अगर देते हैं तो आप उसको देखिए कि आप पॉजिटिव वर्ड्स दें, पॉजिटिव अफर्मेशन दें, पॉजिटिव बिलीफ्स दें, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस दें. और जब पॉजिटिव थॉट्स प्रोसेस रहेगा तो उसके वर्ड्स भी पॉजिटिव रहेंगे, और जब वर्ड्स पॉजिटिव रहेंगे तो उसके एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे. और जब वही एक्शंस को बार 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 रिपीट करेगा तो वो जो होती है उसकी हैबिट्स बन जाएगी, वो उसकी हैबिट्स बन जाएगी. और जब हैबिट्स बन जाएगी, बिकॉज इट्स a person, a human being is a bundle of habits, is a bundle of habit. तो हैबिट्स के बंडल होते हैं, एंड ऑलवेज वॉच योर हैबिट्स, बिकॉज वही आपका कैरेक्टर होता है. आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का ऐसा हो गया है कि उनका नाम लेते ही अरे यार वो आदमी एकदम पंक्चुअल और दूसरा आदमी अरे यार उसका कहाँ नाम ले लिया, वो हमेशा रोते रहता है ना. क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, वो उसकी कैरेक्टर बन जाते हैं, क्योंकि आपने कई बार उनको देखा होगा कि वो वही बिहेवियर बार बार रिपीट करते हैं, वही बिहेवियर बार बार रिपीट करते हैं. तो जो बिहेवियर आपने बार बार रिपीट किया वही आपका हैबिट है और वही आपका कैरेक्टर है. तो ऑलवेज ऑलवेज वॉच ऑन योर बिहेवियर, बिकॉज योर कैरेक्टर जो है दैट बिकम्स योर डेस्टिनी. बहुत सारे लोग मेरे को बोलते सर आप मेरे को अपना भविष्य बता देंगे कि हैंडराइटिंग देख के. तो मैं उनको बोलता हूँ मैं भविष्य नहीं बताऊंगा, मैं भविष्य नहीं बता सकता, लेकिन आई कैन हेल्प यू टू वर्क ऑन योर थॉट प्रोसेस. और अगर आपने अपना थॉट प्रोसेस पे काम कर लिया तो आप जानते हैं आपका भविष्य क्या होगा. बिकॉज आज तक आप जहां भी हो वो आपके एक थॉट प्रोसेस की वजह से हो. आपके कुछ थॉट प्रोसेस है जिनकी वजह से आपके हैबिट्स कुछ क्रिएट हुई, आपका कैरेक्टर क्रिएट हुआ और आज यहाँ पे हुआ. अगर आपको इफ यू डोंट लाइक दिस प्लेस जहाँ पे आज आप हो, और इफ यू वांट टू ग्रो फ्रॉम दिस, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर थॉट प्रोसेस. अगर हमको फ्रूट्स अगर अच्छे नहीं लगते तो हमको रूट्स पे काम करना पड़ेगा. वी हैव टू वर्क ऑन रूट्स. यस, होप यू ऑल आर विथ मी. इफ यू आर एग्रीइंग विथ मी प्लीज चैट बॉक्स में आप लिखिए एग्री. गुड. सो लेट्स मूव अहेड. अभी देखिए हर बच्चा अपने आई लिखता है. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस आई, जो PPI बोलते हैं, जो अपने लिए लिखते हैं. लाइक आपने भी बहुत सारे लिखे होंगे आई, डिफरेंट डिफरेंट आई आपने लिखे होंगे. कुछ आई लोग इस तरह से लिखते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं. अभी यहाँ पे मैं आपको एक बोर्ड पे कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा. कैन यू सी दिस?
ये जो ऊपर की लाइन है, ये जो ऊपर की लाइन है, ये जो है ये है मदर। अभी ये मैं बच्चे के थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बट आपको ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं है, बट बच्चे ने वो थॉट प्रोसेस उठाया हुआ है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये होता है बीच का जो स्टेम होता है वो है सेल्फ, और जो नीचे वाला है जो है वो है फादर। नाउ दिस इज कोई नेसेसरी नहीं कि बायोलॉजिकल मदर फादर हो। ये जिसने उसको 0 to 7 के बीच में इम्पैक्ट किया है वो मदर फिगर ऊपर वाला जो रहेगा, बीच वाला है वो उसका खुद का सेल्फ है, और ये जो डाउन वाला है नीचे जो है, दिस इज फादर, दिस इज फादर। अब आपके सामने मैंने ये 3 अलग अलग टाइप के, नॉर्मली मेरे कोर्स जो होता है वो करीब 25 घंटे से ज्यादा का कोर्स होता है। तो उसके अंदर तो हम ये लगभग अराउंड मोर देन 30 आई सिखाते हैं, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ आई बताऊंगा, और एक्चुअल में क्या होना चाहिए वो बता दूंगा, करेक्ट क्या होना चाहिए वो बताऊंगा। तो वो चीज आप देख लीजिएगा। फर्स्ट आई है, ये आई को देख के आपको क्या लगता है, आप चैट बॉक्स में लिखिएगा फर्स्ट वाला आई। ये जो आई है इसको देख के क्या लगता है, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर वाला जो होता है वो मदर है, बीच में वो जो है वो सेल्फ है, और नीचे वाला जो है वो फादर। व्हाट डू यू फील? Yes, away from both the parents. Child cannot connect to mother and father. Yes, some sort of disconnect. Exactly, exactly. ये जो है यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे माँ का हाथ है सर पे, तो मदर इज रेडी टू हेल्प। इवन नीचे जो हाथ है वो फादर है, ही इज ऑल्सो रेडी टू हेल्प। बट बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, ही इज थोड़ा सा वो इमोशनली डिस्कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट इमोशनल, वो डिस्कनेक्ट है। मदर से भी डिस्कनेक्ट है, फादर से भी डिस्कनेक्ट है। एग्जैक्टली, है ना, डिस्कनेक्ट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। एग्जैक्टली। तो ये फर्स्ट हो गया। अभी नाउ विल टॉक टू अबाउट द सेकंड वन। सेकंड वन जहां पे वो एकदम टच है, क्रॉस किया हुआ है। यस, निकिता जैन हैज रिटन वेरी गुड, वेरी मच कनेक्टेड विद द पेरेंट्स। यस, आपने बहुत अच्छा लिखा है। दे आर वेरी मच कनेक्टेड, बहुत ज्यादा कनेक्टेड, और कभी कभी बहुत ज्यादा कनेक्शन भी इश्यू होता है, मालूम है कि दे आर सो मच कनेक्टेड कि उनका वो क्रॉस हो गया है। और क्रॉस जो हो गया है यानी कहीं ना कहीं उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन कनेक्शन है। तो ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चे हैं जो पेरेंट्स के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, लड़ाई झगड़ा वगैरह चलते रहेगा, आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, बट दे विल स्टे टुगेदर, कनेक्टेड रहेंगे। तो ये जो है ये सेकंड वन है। देयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, हमेशा उनका क्वेश्चनिंग चलते रहेगा पेरेंट्स के साथ में। देन थर्ड वन, ये बड़े ध्यान से समझना, दिस इज द वेरी डेंजरस। जहाँ पे ये जो फिगर आया है नीचे जो, दिस इज कॉल्ड एज अ क्लॉक विच इज नॉट अ गुड साइन। और आजकल देखा गया टीनेजर्स में ये बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो वी हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ दिस। दिस इज सम काइंड ऑफ गिल्ट एंड रिवेंज टेकिंग मेंटालिटी। ये जो इस तरह का जो नीचे ये जो क्लॉ बन रहा है, ये अच्छा साइन नहीं है। समटाइम इट्स अ चीटिंग मेंटालिटी, गिल्ट है, तो इससे होना चाहिए। स्पेशली दिस इज अगेन फादर से है, तो फादर के साथ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, इस तरह की चीजें होती है, या फादर फिगर वगैरह जो होती है, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। तो इसको अवॉइड करना है। अगर आपके आपके चाइल्ड के हैंडराइटिंग में इस तरह का जो पैटर्न है, तो उस पैटर्न को ट्राई टू अवॉइड दिस, राइट। तो दिस इज एक्चुअल, जहाँ पे दोनों कनेक्ट होंगे कि भाई ऊपर से भी कनेक्ट है, और मदर एंड फादर बोथ आर connected, right?
नाउ वील टॉक अबाउट दिस। यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, सो बी रेडी। ऐसा कौन सा है, लाइक अगर हम फर्स्ट वन है, वील टेक इट इन एज ए 1, इसको जो है बीच वाला जो है उसको सेकंड लेंगे, और जो बॉटम वाला है उसको हम 3 लेंगे, नंबर 1 2 3। तो नाउ which one you feel is more outgoing, which one you feel who have a good control over his senses, and which one you feel who has a suppressed emotions, number 1 2 3, yes, very good. What, first second third? I'm not one. Yes, first is outgoing, third is suppressed, very good. Second one is balanced, true, good. तो ये जो है, अभी आप लोग देखोगे, आप में से भी कुछ लोगों ने जो भी लिखा था उनके भी हैंड राइटिंग में इस तरह के स्लैंट्स रहे होंगे, राइट? यू ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ स्लैंट्स। Which one slants you have? आपका अपना स्लांट को आप चेक करिए, आप कौन से स्लांट में आते हैं। देयर आर कुछ लोग होंगे जो फर्स्ट वन में होंगे, तो उनको लोगों से मिलना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, दे लाइक दैट, गोइंग आउट एंड मीटिंग पीपल्स एंड ऑल दिस। ये जो है ये कैसा है, दे आर वेरी बैलेंस, अपने आप पे कंट्रोल है। और ये जो है ना, ये तो कुछ जल्दी से बताएगा नहीं। अभी ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में कुछ चीजें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, और उनके लिए छोटी छोटी चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसने फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पेपर पे उसने कुछ ऐसे भी कुछ भी डूडलिंग किया और कुछ उसने बनाया, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, कुछ भी हो सकता है, बट वो आके आपको दिखा रहा है मम्मा मम्मा सी और पापा पापा सी, एंड यू आर बिजी इन योर वर्क, यू आर बिजी इन योर वर्क, और आपने देखा अरे क्या बेकार सी चीजें बना दी, ऐसा करते। और ये सारी चीजें होने पे बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेता है। सेम थिंग अगर स्कूल में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, इसकी वजह से वो अपना इमोशंस को सप्रेस कर लेता है, वो ज्यादा किसी को बताना नहीं, इमोशंस को अपने पे रख रहा है, वो ज्यादा एक्सपोज नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, अगर आप देखोगे, मतलब एग्जाम्पल के लिए लूं तो अगर समझो स्कूल में कोई घटना हुई, तो पहला वाला क्या करेगा, वो आके आपको बताएगा, मम्मा मम्मा यू नो आज स्कूल में क्या हो गया, अरे कितना ये किया हमने, बहुत मजा किया, और यू नो हमको आज मेरे से गलती से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, और मेरे को गलती से मिस्टेक हो गई तो मेरे को टीचर ने मेरे को बाहर मार डांटा, मुर्गा बना। नॉट, आजकल तो ये सारी चीजें नहीं होती, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। वो इस तरह से आपको सारी चीजें खुल के बताएगा। सेकेंड वन जो है ना, वो कुछ ज्यादा बोलेगा नहीं, लेकिन अगर उसने बोलेगा कि अगर आपने पूछा अरे क्या हुआ, अरे आज स्कूल में कुछ हुआ क्या, तो बोलेगा हाँ 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 मम्मा चलिए वो थोड़ा सा मेरे से कुछ गलती हो गई थी एंड टीचर ने मेरे को थोड़ा सा डांटा भी, बट कुछ ज्यादा ऐसा नहीं था, इट्स ओके, हो गया। और तीसरा वाला बच्चा रहेगा, अगर उससे पूछा आपने कि क्या हो गया, वो अरे कुछ नहीं हुआ, छोड़ो ना, कोई खास बात नहीं, एंड वो उस चीज को छोड़ देगा। तो दिस काइंड ऑफ पीपल दे विल बिकम, अगर धीरे धीरे इनका अगर स्लैंट इस तरह से है तो वो लोग लेस एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, अगर पीछे वाला बैकवर्ड स्लैंट, राइट। लेट्स मूव अहेड। ये जो है ये लेटर डी, लेटर डी ये सेल्फ के लिए है, लेटर डी। तो आप ये देखोगे पहला जो डी है, फर्स्ट डी जो है, उसका जो उसने बनाया है, लूप जो बनाया है वो काफी बड़ा है, लूप जो है उसने काफी बड़ा बनाया है। अभी ये बड़ा लूप का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने ये सुना है क्या, कहावत जो बोलते हैं
बिकॉज मैं हिंदी की एक कहावत बोल रहा हूँ, मुंह फुलाना या मुंह सूजना, ये सुना है? यस और नो, खाली मेरे को बताइए। हैव यू हर्ड अबाउट मुंह फुलाना या मुंह सूजना? यस। तो ये क्या हो रहा है, ये मुंह को फुलाया हुआ इस तरह से, क्यों? क्योंकि उसने मुंह क्यों फुला रखा है? इज very much sensitive to personal criticism. He is very much sensitive to personal criticism. हम लोग कई बार क्या करते हैं, बच्चों को उसके फ्रेंड के सामने, कई गेस्ट्स के सामने कुछ भी ऐसा कुछ कर देते हैं और उसका फिर वो मुंह फूल जाता है। अब कई लोग तो ऐसा मुंह फुला के भी रहते हैं, बट अगर आप लेटर में देखोगे तो इस तरह से होता है। बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं, जल्दी सी बातों को दिल पे ले लेते हैं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो बात उनके दिल पे लगती है। तो अगर इस तरह का डी लिखता है बच्चा, तो पहली बात, उसको पब्लिकली लोगों के बीच में कभी भी कुछ भी गलती से भी डांटे नहीं, कुछ बोलो मत। आपको जब भी उसको बात करना है तो उसको प्यार से समझाना है, बिकॉज ही इज वेरी मच इमोशनल, बहुत ही भावुक हो जाएगा, वो बातों को दिल पे लगा लेगा। एंड बेटर है कि उसका डी का अगर लूप बड़ा है तो उसको धीरे धीरे उस लूप को आप उसको नॉर्मल कराओ, है ना? दे आर वेरी सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म। फर्स्ट वन, दिस वन। नाउ दिस सेकंड वन। अब अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो जो मैंने आई में बताया था, ये भी उसी तरह का पैटर्न बन रहा है। ये ऐसे ये लाइन आई, फिर वापस जाके ऐसे गोल हो गया, तो ये जो है वो क्लॉ बन रहा है, क्लॉ बन रहा है। तो ये जो क्लॉ है वो अगेन दिस इज नॉट गुड, लेकिन क्योंकि ये डी में है तो दिस इज नॉट गुड फॉर सेल्फ। सच पीपल, सच राइटर आर वेरी वेरी हार्श ऑन सेल्फ। ये लोग अपने आप को फिजिकली बहुत पेन देते हैं, हार्श रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनको कुछ सामान लाने जाना है और 2 किलोमीटर है और वहां से शेयर ऑटो भी मिलता हो, स्टिल दे विल वॉक डाउन, सामान लेके भी वो चलते हुए आएंगे, बिकॉज दे आर वेरी हार्श ऑन सेल्फ। अगर पेरेंट्स में ऐसा है, स्पेशली अगर मदर को ऐसा है इस तरह का डी, तो शी विल बी हार्श ऑन चिल्ड्रंस ऑल्सो, बच्चों पे भी वो हार्श रहेगी। तो ट्राई टू अवॉइड दिस डी, सेकेंड डी। फर्स्ट डी थोड़ा सा चलेगा, बट उसको भी अगर आप जितना कम कर देंगे उतना अच्छा है, इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होगा। और सेकेंड डी से बचना है। तो कैसा डी लिखना है? तो इस तरह का एकदम सिंपल, फर्स्ट आप बनाइए, ये लूप बनाइए, स्ट्रेट, कम बैक एंड डी। दिस इज वेरी सिंपल डी, राइट? लेट्स मूव अहेड। दिस, अब ये जो चीज है यहाँ पे है ना, बहुत ध्यान से समझना। ये क्या होता है, हम आई के ऊपर डॉट लगाते हैं। ये जो मैंने रेड कलर का बनाया, ये अलग अलग प्लेस के समझने के लिए बनाया है। 1, 2 और 3। लेफ्ट वाले को हम 1 लेंगे, बीच वाले को 2 और राइट वाले को 3। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये आई के ऊपर अपना जो डॉट लगा है। एंड देयर आर सम पीपल जो इस तरह का सर्कल भी बनाते हैं आई पे और जे पे स्पेशली। तो दिस डॉट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आपकी हैंडराइटिंग लिखते हैं उसके अंदर आई डॉट्स का बहुत महत्व होता है। दे आर वेरी, बिकॉज ये कोई भी चीज के ऊपर डिटेल और फोकस, कंसंट्रेशन को बताते हैं कि आप कितने कॉन्सेंट्रेटेड हैं। चलो हम आगे बढ़ने से पहले लेट्स हैव वन क्विज। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। अभी जैसे इसको मैं 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ, इसको 3 मान रहा हूँ। अभी आपको ऐसा कौन सा लगता है कि देयर आर, हु इज पास्ट ओरिएंटेड, who is present oriented and who is future oriented? Good. This 2 is present, right? Sir, I guess there was some network issue.
So probably we have missed something. So if you can repeat. From my side, Yes, yes. Just a because bit, I am not getting much. reply. I am getting नहीं नहीं, proper हल्का, replies. बहुत छोटा सा था, बहुत Okay. छोटा सा. तो ये आप लोगों को ये जो 3 dots है, 3 dots are very very important. Sorry, not this is मतलब dot on I is very important. Very important. Why? Because it shows your concentration. How much concentrate, मतलब how you can concentrate, or this is again how detail oriented you are. How much detail oriented you are. तो ये चीज आपको देखना है. तो अगर अभी जैसे आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है, नंबर 3 इज फ्यूचर, नंबर 2 इज प्रेजेंट एंड नंबर 1 इज पास्ट. अब जो बहुत सारे लोग आई का डॉट लगाते हैं, पीछे की तरफ लगाते हैं, दिस पीपल आर पास्ट ओरिएंटेड. ये लोग कोई भी चीज पास्ट में जाके करते हैं, तो दिस पीपल आर पास्ट को पकड़ के बैठे हैं. दिस पीपल आर वेरी प्रोक्रेस्टिनेटर. ये प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, हर चीज को हमेशा आगे सॉरी मतलब काम को टालने की कोशिश करेंगे. बिकॉज अगर हम इसको स्ट्रेट को प्रेजेंट मानते हैं, दिस इज प्रेजेंट, तो दिस इज रियलिटी. तो दे आर फार बिहाइंड द रियलिटी, दे आर फार बिहाइंड द रियलिटी. तो वो लोग कोई भी चीज को टालते रहेंगे. अगेन राइट वाला जो है वो हमेशा फ्यूचर की बात करेगा. तो ये जितना आगे जाएगा वो बहुत सारा फ्यूचर में ही रहेगा, बट उसको एक्शन तो आज लेना है ना, प्रेजेंट में रहना है. अगर फ्यूचर ओरिएंटेड होना इज गुड, बट आपको प्रेजेंट में रहना है. तो दिस पीपल है फ्यूचर, इनका इंट्यूशन बहुत आगे. लेकिन क्या होता है कि बहुत आगे की सोचने के चक्कर में कई बार प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाते हैं. एंड दिस इज प्रेजेंट. जो ये है प्रेजेंट है. प्रेजेंट प्रेजेंट में ये अब आज के बारे में सोच रहे हैं, इज वेरी गुड इन फोकस कंसंट्रेशन एंड. लेकिन आप देखोगे कि ये मैंने थोड़ा सा ऊपर बनाया है, ये बहुत ऊपर बनाया है. तो दिस पीपल आर डे ड्रीमर. डे ड्रीमर इन्होंने क्या कर रहा है, ये गोल्स वगैरह है, लेकिन ये हमेशा खाली सोच में ही है. लाइक दे आर बिल्डिंग कैशल्स इन द एयर. हवा के अंदर उनके किले बन रहे हैं. तो वो जो हवाई किले बनाते रहते हैं, तो उसका जो उसको थोड़ा सा आई के ऊपर प्रॉपर होना चाहिए. बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, बहुत पीछे नहीं होना चाहिए, बहुत आगे नहीं होना चाहिए. जितना उसके ऊपर रहेगा उतना फोकस और कंसंट्रेशन आई डॉट का अच्छा रहेगा. बट इट शुड बी डॉट. बहुत सारे लोग सर्कल बनाते हैं. इट्स ओके, सर्कल बनाना भी इट्स ओके. नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. कुछ लोग हैं जो सिर्फ डॉट लगा के बनाएंगे, और कुछ लोग हैं थोड़ा सर्कल बना के अगर लिखते हैं हैंडराइटिंग में. विच वन लुक्स मोर अट्रैक्टिव? विच वन लुक्स मोर अट्रैक्टिव? एग्जैक्टली, सर्कल सर्कल सर्कल. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही लिखा है आपने. सर्कल वाला जो है वो अट्रैक्टिव लिखा है. यानी सर्कल जो आदमी बनाता है, he needs attention, he require attention. attention seeker होते हैं. These people are creative people. क्रिएटिविटी रहती है, बट उनको अटेंशन चाहिए होता है. उनको अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो लोग इस तरह की चीजें करते हैं. तो ये जो सर्कल है, डॉट वाला जो है वो फोकस कॉन्सेंट्रेट है, वो ज्यादा अटेंशन के पीछे नहीं जाएगा. बट ये सर्कल वाला है, उसको अटेंशन चाहिए. अब अगर सर्कल नॉर्मल है, इट्स ओके, चलेगा. पर कोई लोग बड़े बड़े सर्कल बनाते हैं, वो नहीं होना चाहिए. बिकॉज बहुत ज्यादा अटेंशन के चक्कर में ही पड़े रहोगे तो आप कोई भी चीज का काम कब करोगे. तो यू हैव टू वर्क इन प्रेजेंट. तो वो आई डॉट हो या सर्कल हो, तो नॉर्मल छोटा सर्कल हो, राइट. और अगर कोई बहुत हायर जो फोकस वाली स्टडी कर रहे हो, लाइक हायर स्टडी, यूपीएससी है, कोई चार्टर्ड अकाउंट, जैसे कोई सीए वगैरह कर रहे हैं, कोई लाइक जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना है, डॉक्टरी कर रहे हैं, यूपीएससी वगैरह करना है, इस तरह की चीजें हैं, तो उनको जो है ये जहां तक हो सके डॉट रखना चाहिए, ताकि उनका फोकस और कंसंट्रेशन बना रहे, राइट. See, I am trying to cover as many things as possible.
तो इस तरह से ये आई के ऊपर रहना चाहिए, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं रहना चाहिए, उसके बिल्कुल पास में रहना चाहिए। तो ये आई डॉट और जे का डॉट जो है वो आइदर ये सर्कल हो सकता है या फिर डॉट हो सकती है। नाउ विल अंडरस्टैंड द जोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज। अब मैं अपर जोन, मिडिल जोन और ये पूरा डिटेल में तो हम बात नहीं कर सकते बिकॉज इसके लिए अपना एक अलग ही पूरा सेशन होता है हमारे जो वर्कशॉप होती है उसके अंदर। बट यहाँ पे मैं, क्योंकि हमने स्कूल में ये सारी चीजें सीखी थी, ये 4 लाइंस की जो बुक हम लोग यूज करते थे, तो ये अपर जोन आता था। तो अपर जोन इज योर हेड एरिया, हेड एरिया जो इंटेलेक्चुअल एरिया है। ये जो है ये मिडिल जोन जो होता है ये इमोशंस है, और हमारा स्टमक एरिया, हार्ट एरिया, इमोशंस एंड खाना वगैरह वो सारी चीजें हो गई। एंड देन जो है लोअर जोन जो है वो हमारा एक्शन एरिया है, एक्शन एरिया है। तो उस चीज को हम देखेंगे। आजकल बच्चे गलती से, जैसे वो जब तक 4 लाइन में लिखते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन वो लोग ज्यादातर मिडिल जोन में लिखने लग गए, मिडिल जोन में लिखने लग गए हैं। तो उस चीज को बड़ा ध्यान रखना, स्पेशली अगर कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं। अभी मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं। What's this? दिखा ये? Can you see this? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए मेरे को यस और नो। तो यस, ओके। तो इसमें क्या किया है उन्होंने, अपर जोन के, अगर आप देखोगे टी एंड एच, ये अपर जोन के लेटर्स है, अपर जोन के लेटर्स है, यानी ये हमारे इंटेलेक्चुअल एरिया के लेटर्स है। बट हमने कहाँ पे रख दिया उसको? मिडिल जोन में ही रखा है, मिडिल जोन में ही रख दिया है। यानी वी आर नॉट एक्सेसिंग अवर इंटेलेक्चुअल, हमारे इंटेलेक्चुअल को एक्सेस ही नहीं कर रहे हैं। तो अपर जोन के लेटर्स है वो पूरे अपर जोन तक जाने चाहिए। अपर जोन के लेटर्स जो है वो अपर जोन तक जाना चाहिए। अगर वो वहां तक नहीं जा रहे हैं तो हम अपने इंटेलेक्चुअल को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे आजकल देखा गया कि बहुत सारे बच्चे जिनको लोग बोलते हैं लो IQ या इस तरह की चीजें बोलते हैं, इट्स नॉट लो, बिकॉज अगर आप उसको एक्सेस करना शुरू करेंगे, इन बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं होता, आई के डॉट पे ध्यान दीजिए, प्लस अपने अपर जोन को थोड़ा सा प्रॉपर कीजिए, यू विल सी द रिजल्ट्स, यू विल सी द रिजल्ट्स डेफिनेटली। ये आप अपर जोन को एक्सेस करिए। अभी मैं बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेस अवर अपर जोन। और जो बच्चे फिजिकली इतने ज्यादा वो नहीं करते तो उनको लोअर जोन को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। लोअर जोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विल डिस्कस मोर इन अवर, हमारे वर्कशॉप में हम लोग करते हैं। बट ये जो चीजें इसको ध्यान से दीजिएगा। अभी इसको अगर आपको सही करना है तो यू हैव टू करेक्ट दिस लाइक, इस तरह से अपर जोन पूरा कंप्लीट यूज करना चाहिए। वी हैव दिस 3 जोन्स, तो हमको तीनों जोन को सही इस्तेमाल करना चाहिए। यस, लेट्स मूव अहेड। नाउ विल अंडरस्टैंड। अब मैं बहुत क्विकली जाता हूँ यहाँ से, उसके बाद में हम लोग विल हैव अ क्वेश्चन, बिकॉज ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। तो विल हैव आफ्टर दैट विल हैव सम क्वेश्चन आंसर सेशंस, एंड आपका कुछ क्वेरीज वगैरह रहेगी तो वो भी करेंगे। तो फर्स्ट आई विल अंडरस्टैंड कि ग्राफोलॉजी को कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले बात तो आप उसको सेल्फ डिस्कवरी के लिए यूज कर सकते हो, बिकॉज इफ यू सी दिस IK, दैट इज I know what I know. For example, my name is Sri Prakash Jaluka. I am a life coach, and I know what I know. I know what I know. Then IKIDK. I know what I don't know. That is
आई एम श्री प्रकाश जालूका, बट आई कैन नॉट ड्राइव, मेरे को ड्राइविंग नहीं आ सकता, या मैं प्लेन नहीं उड़ा सकता हूँ, और आई कैन नॉट स्पीक मैंड्रीन, दैट इज चाइनीज लैंग्वेज, तो वो सारी चीजें मैं नहीं बोल सकता। तो ये जो चीज है यहाँ पे, आई नो दैट आई डोंट नो, बट थर्ड जो एरिया है वो है आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, IDK, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। ये हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स है, हमको पता ही नहीं होता कि हमारा क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेसेस है, हाउ वी कैन यूटिलाइज आवर स्ट्रेंथ इन आवर करियर, और हमारे रिलेशनशिप में क्या करते हैं। कई बार हमारे रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस चलते रहते हैं एंड हम सामने वाले को ही हमेशा गलत ठहराते रहते हैं, बट समटाइम वी डोंट नो व्हाट, हमारे अंदर भी शायद कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो हमको नहीं करनी चाहिए, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट बिकॉज दैट इज अ ब्लाइंड स्पॉट, आई डोंट नो। तो ये जो चीज आप सेल्फ डिस्कवरी कर लेते हैं। या निकिता, इट्स अ मिडिल जोन इज अबाउट प्रेजेंट एंड फूड्स एंड ऑल। बहुत सारे लोग जो पर्सनल लुक्स के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दे देते हैं, या विल टॉक अबाउट दिस। ये जो है मिडिल जोन जो है ये हमेशा इमोशंस, तो दैट्स व्हाई बीपी आजकल बहुत एक डायलॉग है जो आजकल टीनेजर्स ज्यादा बात करते हैं, एंड दे ऑलवेज टॉक अबाउट माय लाइफ माय रूल्स, है ना, मैं जो चाहिए पहनूंगा, जो चाहिए खाऊंगा, दिस ऑल आर दे टॉक अबाउट इट। उनका कुछ फ्यूचर के प्लान नहीं होते हैं, दे डोंट एक्सेस टू देयर इंटेलेक्चुअल्स है ना, और वो लोग कुछ भी चीजें बचपने की हरकतें करते रहते हैं, और उसमें भी फिर कुछ बोलते हैं ना, कुछ जो चीज होती है लाइक जैसे बीच में कॉल सेंटर कल्चर चलता था, अभी बीच में फिर ये टिकटॉक वीडियोस एंड ऑल, ये सारे लेक्चर, ये सारी चीजें आ गई। तो यहाँ पे बच्चे इंटेलेक्चुअल चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको क्या है, अभी क्या एंटरटेन आ रहा है, अभी क्या मजा आ रहा है, राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, उसी चीजों पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और वहां पे वो अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे। So this is about self discovery, then compatibility, as I said कि कई बार हमारे रिलेशनशिप पे पता नहीं चलता है, तो आप कंपैटिबिलिटी कर सकते हो, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो आपको हैंडराइटिंग देख के पता चल सकता है एक दूसरे का कि क्या है। अगर आपको लगता है कि कहीं उसी के साथ में रहना है तो आप उसको इम्प्रूव करके रह सकते हैं, अदरवाइज यू कैन चूज अदर वन। हैंडराइटिंग से बहुत सारी चीजें पता चल सकती है कि कहाँ तक साथ निभाएंगे, है ना, वो सारी चीजें हैं। देन बिजनेस पार्टनर्स हैं, क्योंकि एवरीबडी हैज देयर सम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो इट डजंट मेक्स कि आप अपने वीकनेसेस को के ऊपर काम करोगे मतलब नहीं होगा। इसलिए आपके अगर पार्टनर्स हैं, बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ, तो वो अपना स्ट्रेंथ पे काम करे और आप अपना स्ट्रेंथ का काम करोगे। इस तरह से आप काम को डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हो, एक दूसरे को बिना इंटरफियर करे, तो आप अपने रिलेशनशिप को भी अच्छे से रख सकते हैं एंड यू कैन कैरी ऑन योर बिजनेस एज वेल। देन टीचर एंड स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर पढ़ाती है, अपना जी जान झोंक के पढ़ाती है, आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर टीचर, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता। व्हाई? बिकॉज उनका अपना तरीका है पढ़ाने का और उसका अपना तरीका है सीखने का। अगर उन दोनों के बीच में कुछ कॉम्बिनेशन बन जाता है, उन दोनों के बीच में अगर एक दूसरे को समझ के वो लोग आ जाते हैं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अ स्टूडेंट एज वेल एज टीचर की यार ये बच्चा जो है इसको तो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत क्विकली कोई भी चीज को ग्रैस्प कर लेते हैं, कुछ को टाइम लगता है, तो आपको उनको टाइम देना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक, आई फील। तो वो चीजें होती है, आपको थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे या उसको एटलीस्ट ग्रास्प करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दो, तो वो जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कंपैटिबिलिटी आप टीचर्स स्टूडेंट्स की भी समझ सकते हैं। देन टीम प्लेयर, आज के तारीख में हर जगह यू हैव टू नेटवर्क, यू हैव टू मीट पीपल, आपके ऑफिस में, कंपनी में कलीग्स वगैरह रहते हैं, वो सारे लोगों को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं एंड वहाँ पे आप टीम प्लेयर होते हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आई वाज इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर 22 years in different corporates. Hello.
हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में मैं काम करता, तो मुझे हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती थी, क्यूरियोसिटी रहती थी कि लोगों को मैं कैसे जानूं, लोगों को कैसे जानूं। एंड उसी मेरी एक जो सोच थी उसी ने मुझे बहुत सारी चीजें लर्न करने के लिए इंस्पायर किया। एंड उनमें में से एक थी ग्राफोलॉजी, जहाँ पे मैंने जब वो सीखा तो आई पर्सनली डन लॉट्स ऑफ चेंज, अपने आप में मैंने काफी सारे चेंज किए, और उसके बाद में मैंने लोगों को सिखाना भी शुरू किया। एंड नाउ आई टीच पीपल, बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैंने बोला काफी सारे इम्प्रूवमेंट लाइक एंटरप्रेन्योर्स, आई चेंज मैनी एंटरप्रेन्योर्स। बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्ट्रेस था, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए मैंने उनको हेल्प करी। देयर आर सम पीपल हु इज डूइंग वंडरफुल, जो हमारे से सीख के अभी वो भी लाइक दे आर प्रैक्टिसिंग एज अ ग्राफोलॉजिस्ट, तो बहुत सारे लोगों को पर्सनल काउंसलिंग वगैरह देते हैं, उनके हैंडराइटिंग एनालिसिस वगैरह करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, दिस इज फैंटास्टिक। और ये कभी करने लग जाते हो जब आप खुद लोगों को समझना शुरू कर देते हैं। देन चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्ड अब्यूज। ये चाइल्ड अब्यूज में भी बहुत सारे काम। अब देखो, अब एक बच्चा था जो अच्छे से लिख रहा था, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि वो अच्छे स्लांट में लिखता था, ऑल ऑफ सडन वो बैकवर्ड स्लांट में लिखना शुरू कर दिया। व्हाई दिस हैपेंड? क्यों उसने अचानक से अपने आप को सप्रेस कर लिया? ये छोटी छोटी चीजें अगर आप हैंडराइटिंग को अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई चाइल्ड इज ऑल ऑफ सडन सप्रेस्ड हिज इमोशंस। और अगर सही समय पे उसको पहचान लिया गया, देखा गया, तो उस चाइल्ड अब्यूज से भी बच सकते हैं। हैव यू सीन द मूवी कहानी 2? उसके अंदर वो लड़की है कैसे कुछ पैटर्न्स बनाती है, और वो पैटर्न्स की वजह से, बिकॉज वो खुद भी कई अब्यूज से गुजरी हुई रहती है, जो फिल्म की हीरोइन है विद्या बालन, तो उसको समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं उस बच्ची के साथ में कुछ इश्यू है। एंड जब वो पैटर्न मिल जाता है, उसको देखता है, तो उसको वो चीज और कंफर्म हो जाती है। तो बहुत सारे पैटर्न्स आपको समझ में आ जाते हैं, and you can understand through graphology. यहाँ पे मैं कवर हो रहा है मेरा स्क्रीन। Then aptitude, as I told you, aptitude, अगर बच्चा अपर जोन को एक्सेस नहीं कर रहा है, बच्चा अगर अपर जोन को एक्सेस नहीं कर रहा तो उसको लोग ठप्पा लगा देंगे लो IQ। बट अगर वही बच्चा अपर जोन को प्रॉपरली मैन करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आप देखोगे उसका IQ लेवल भी बढ़ते जाएगा। अगेन बच्चा जो है वो मैकेनिकल है या इज सम लाइक क्रिएटिव टाइप का बच्चा है, बिकॉज आजकल कैरियर बहुत सारे बनते हैं, बट सम पीपल वांट टू बी क्रिएटिव, और घर वाले उसको जबरदस्ती इंजीनियर बनाने में लगे हुए, या उसमें हो सकता है इंजीनियरिंग वाला टैलेंट है लेकिन पापा मम्मी थोड़े से क्रिएटिव टाइप के, वो उसको स्पोर्ट्समैन बनाने लग जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, तो वो भी आप इसमें थोड़ा सा पता कर सकते हैं, है ना। एंड एनवायरनमेंट का भी होता है, कुछ बच्चे बड़े खुले में, मतलब लाइक दे वांटेड टू मीट पीपल और बहुत सारे लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं, कुछ थोड़ा सा एकांत चाहते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स थ्रू हैंडराइटिंग। देन रिक्रूटमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आर यू एक्साइटेड टू लर्न मोर अबाउट अमेजिंग साइंस ऑफ ग्राफोलॉजी? देखिए, आई एम नॉट हियर टू सेल माय कोर्स एंड ऑल, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी बट स्टिल इफ यू वांट टू लर्न, तो यहाँ पे आपको ये मेरे नंबर है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और यू कैन गेट इन टच विद कावेरी, शी विल आल्सो हेल्प यू टू गेट कनेक्टेड टू मी। तो ये कुछ जो चीज थी वो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, एंड होप आपको कुछ आज वैल्यू मिली होगी, यू लर्न अ लॉट जो भी चीजें। नाउ here we are open for question answers. So let it be that probably the questions are typed in the chat, and Yes. sir, you can take those people, or maybe they can raise their hands. So Right. I can see Nikita has raised her hand. Yes. So, हेलो सर, थैंक Yeah, यू Nikita. फॉर इनवाइटिंग अस। मुझे पूछना, कई बार हम इंस्पायर हो जाते हैं दूसरी हैंडराइटिंग से, लाइक सपोज इफ आई मुझे ये वाला आई लिखना बहुत अच्छा लग रहा है, दिख रहा बहुत अच्छा है, तो आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग इन दैट सेंस, तो क्या उससे मेरी पर्सनालिटी चेंज हो रही है? एग्जैक्टली अच्छा, एग्जैक्टली अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको मतलब आपका सवाल यही है ना कि आप एक तरह से एक तरह से लिख रही थी ऑलरेडी, है ना,
फिर आपने किसी और को देखा और उसकी वो पर्टिकुलर आई आपको बहुत अच्छा लगा, हाँ, और फिर आपने उस चीज को कॉपी करना शुरू कर दिया, राइट है ना। अभी ये क्या हो रहा है, देखो हो सकता है अभी मैं उनको एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और एग्जाम्पल के जरिए आप समझने की कोशिश करते हैं कि उनका नाम ले लेते हैं कि वो आपके अंकल है रमेश, हाँ, जिनका आई आपको पसंद आया और आपने वो उनका कॉपी करना शुरू किया। और जो उनकी वाइफ है, जो आंटी है, वो भी बहुत अच्छा लिखती है, उनकी भी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो उनका नाम समझो फॉर एग्जांपल है क्या लूं, व्हाटएवर, सरिता, माधुरी, ओके माधुरी, ठीक है चलेगा सरिता। अभी आपने और भी बहुत सारे लोगों की हैंडराइटिंग देखते हो, है ना, देन व्हाई यू चूज दैट पर्टिकुलर आई? मे बी बिकॉज वी आर इन टच विद देम, या मैंने कहीं उनको क्लोजली देखा हो। जैसे आई वांट टू टेल यू एग्जैक्टली, जैसे मेरी डॉटर को कुछ मेरी चीजें पसंद है, तो शी वांट्स टू कॉपी, मम्मा अब अच्छा ये बहुत अच्छा लिखता है, आई वांट टू राइट एज यू आर राइटिंग। एग्जैक्टली। अभी कितनी बड़ी है आपकी डॉटर? शी इज 8 years। देखो मैंने बताया था 0 to 7, 5-year-old son wants to copy me। 0 to 7, हाँ, 0 to 7 मदर का इन्फ्लुएंस आना ही ओके, है ना, 0 to 7 मदर का इन्फ्लुएंस आना ही है। एक्चुअली तो 0 to 7 इसलिए बोलते हैं कि वो फिजिकल वर्ल्ड में, बाकी तो जब से आपने कंसीव किया तब से उसको मदर का इन्फ्लुएंस होता ही है, राइट। तो 0 to 7 वो मदर से हर चीज को करेंगे। दैट्स व्हाई आई टोल्ड इनिशियली जब मैंने इस चीज को लिया था कि 0 to 7 में मदर का जो बिहेवियर है, मदर का जो भी नेचर है, मदर के जो भी हैबिट्स है, मदर की जो भी एक्ट्स है, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज वो सारे के सारे थॉट प्रोसेस है, जो उसके बिलीफ्स है, वो मदर उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। और मदर फिगर, राइट, समटाइम घरों में जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, मदर फिगर रहते हैं, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे ये पूछना था बस कि पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली, थॉट प्रोसेस मैंने वही बताया ना, थॉट प्रोसेस चेंजेस। थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, फिर थॉट प्रोसेस से वो धीरे धीरे वो सारी चीजें उसके हैबिट्स, एक्शंस में सब चीजें बदलने शुरू। ओके, 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 थैंक यू। अभी जो आप लिखते हैं, अभी जो भी लिखते हैं, बिकॉज राइटिंग जब हम बचपन में सीख रहे थे तो हमको सिखाया गया था कि ऐसे लिखो, फिर हमने धीरे डिफरेंट टाइप्स के लेटर्स बनाने शुरू कर दिए, या और बहुत सारी चीजें हमने करने शुरू की। तो क्यों हुआ? बिकॉज वी डेवलप्ड अवर सम थॉट प्रोसेस। ओके, अब जब भी चीजें होती, कोई भी चीज हमको जब हमारे थॉट प्रोसेस से मिलती जुलती चीजें होती है जो हमको अट्रैक्ट करती है, और जब हम इसीलिए उन चीजों को हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और एक और चीज है, कई बार हम बहुत ही हरी में होते हैं, वी आर राइटिंग समथिंग, जनरली वी राइट इन दैट वे। तो क्या मतलब अगर मैं आराम से लिखूंगी तो आई हैव अ डिफरेंट हैंडराइटिंग, बट इफ आई विल राइट थोड़ा जल्दी में, देन आई हैव अ डिफरेंट हैंडराइटिंग। सो हाउ डज दैट मेक्स अ डिफरेंस इन माय पर्सनालिटी? क्योंकि दोनों ही मेरी हैंडराइटिंग है। दोनों आपकी हैंडराइटिंग है, बट अगेन आई सेड की थॉट प्रोसेस, और उसमें अगर हैंडराइटिंग में देखेंगे दो चीजें होती है, सम आर फिक्स्ड ट्रेट एंड सम आर वेरिएबल ट्रेट्स। ओके, तो जो आप फिक्स्ड ट्रेट्स हैं वो आपके रहेंगे, आओ ये ऐसे बनाना है तो ऐसे बनाओगे। बट वेरिएबल स्टेट्स क्या होता है, आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। व्हेन यू आर इनटू हरी, तो आपका थोड़ा सा स्लांट आगे भागेगा, आई का डॉट आगे भागना शुरू हो जाएगा, थोड़े से वो शार्प एजेस बनने शुरू हो जाएंगे। रीजन बिहाइंड दैट इज कि योर उस समय आप बहुत ज्यादा कुछ तेजी से सोच रहे होते हैं। ओके, बट अब जब आप तेजी से सोचो, हरी, हमारे ये जो वर्ड है ना, हेस्ट है, हरी है, ये हमारे दिमाग को बहुत तेज कर देते ना। एग्जाम का लास्ट आधा घंटा जब बचता है तो हम बहुत तेज सोचना शुरू करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट थिंक वेरी फास्ट। बट बेचारा लिखना तो हाथ को है ना, वो कोशिश करता है कि आपकी स्पीड थॉट की स्पीड को मैच करे, बट वो कितना करेगा? ओके, है ना, तो फिर वो भागना शुरू कर जाता है आगे। राइट, राइट, थैंक यू। Anyone else, if they have questions, they can unmute themselves probably. Lavika ji, Kanika, Sonia, Divya. हेलो सर। दिव्या, सर मेरे ट्विंस है 11 years के। ओके, तो सडनली एक बच्चे की राइटिंग में, मतलब मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने नोटिस किया, कि एक दिन के अंदर अंदर ही उसकी राइटिंग में इतना चेंज आ गया कि ऐसा लगता है कि अब मोती पिरो रहा है, और दूसरे की एज इट इज है जैसे चल रही थी।
ये लास्ट ईयर हुआ जब वो 7th में उसने एंटर किया था। इससे लास्ट एग्जाम तक उसकी हैंडराइटिंग बहुत, दोनों की एक जैसी थी, बहुत गंदी। लेकिन सडनली एक बच्चे की हैंडराइटिंग में इतना चेंज आ रहा है कि आपको देख के लग रहा है कि हाँ बहुत शांति से और बड़ा प्यार से लिखा गया है, कि सब समझ आ रहा है कि हाँ किसी अच्छे बड़े बच्चे ने लिखा। तो अचानक से इतना चेंज कैसे? देखो उसका थॉट प्रोसेस हो सकता है उस समय उसको कुछ अच्छा एप्रिशिएशन मिला हो, वेरस जो दूसरे को नहीं मिला हो, बिकॉज ये बहुत सारी पर्सनल चीजें हैं कि हो सकता है उसने लाइक बहुत सारे बोलते हैं ना कामनेस होता है, तो ही इज अचीव दैट कामनेस कि यार ठीक है मैंने अच्छा से कर रहा हूँ, और देन वो उस चीज को कर रहा है। बट वेर एज जो दूसरा वाला है उसको कोई अप्रिशिएशन जैसा उसको चाहिए था वो नहीं मिला। तो कई बार वो लगता है कि ही इज नॉट अचीव दैट कामनेस, तो उसको वो चीज होती है। हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, और एक दूसरे को कॉपी करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, एक दूसरे से सेम लिखेंगे वैसा जरूरी नहीं है। अच्छी हैंडराइटिंग होना अच्छी बात है, बट कभी कभी क्या होता है लेजिबल हैंडराइटिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरस इलेजिबल होते हैं या कुछ नेगेटिव फॉर्म नहीं आता है, इट्स ओके, कोई इतना कोई इश्यू वाली बात नहीं होती है। तो जिसकी हैंडराइटिंग अभी अच्छी नहीं है उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए कि उसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो, तो उसके थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो और अच्छे हो, तो क्या किया जाए? उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हैंडराइटिंग के लिए, और उसमें फिर अगर ग्राफोलॉजिकल वो है तो आई थिंक कावेरी विल बी राइट पर्सन, शी विल हेल्प यू कि हाउ यू कैन स्टेप बाय स्टेप हर चीज को अच्छे से उसको कर सकते हैं। बिकॉज हैंडराइटिंग जो है वो एक दिन में नहीं बनती है, थॉट प्रोसेस हमारा एक दिन में नहीं बनता, बट देयर आर सम पैटर्न्स, उसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग को काफी ये होगा। सेकेंड थिंग जो होता है हैंडराइटिंग इज लाइक हम यहाँ पे कुछ सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, फिर उसका जो सिग्नल है वो हमारे नर्व्स के जरिए हमारे हाथ तक पहुंचता है एंड फिर हम लिखते हैं, है ना? तो ये जो चीजें इमेजिन करना है ये आपके साइक में आता है ना? तो सर मेरी एक क्वेरी है। एक मिनट मैडम, अभी चल रहा है, एक मिनट। योर हैंडराइटिंग इज योर साइको न्यूरो मस्कुलर एक्टिविटी, है ना, जहाँ पे आपका साइक भी आ जाता है, न्यूरोलॉजी भी आ जाती है उसमें, एंड आपका मसल्स भी आ जाते हैं, मस्कुलर। तो इन तीनों का कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी बच्चे का ये प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उसको कुछ पैटर्न, आज को अभी जो लोग रुकने वाले हैं उनको मैं पैटर्न्स दूंगा, तो वो पैटर्न को आप बच्चों से भी कराइए, तो उनका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, एंड दिस विल हेल्प देम इन अ लॉन्ग टर्म। बहुत सारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं अगर वो भी, उनको भी धीरे धीरे इस चीज को प्रैक्टिस कराया जाए तो इट विल हेल्प देम आल्सो। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ बोलिए आशा जी। क्वेश्चन ये था, हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मेरे हस्बैंड की राइटिंग तिरछी है, मेरे बेटे की भी है, मेरे पोते की भी है, तीनों की राइटिंग सेम है, तो क्या उसमें कोई कितना भी कोशिश करो सीधा लिखते ही नहीं है वो लोगन? तो क्यों कोशिश कर रहे हो आप? वही तो मैं चाह रही हूँ सर, कुछ तो राइटिंग सुधरे। नहीं, उनको देखो, हमको दुनिया को बदलना नहीं है, जेनेटिक होती है ना, ना मेरा क्वेश्चन है। ऐसा है कि हमको उनको बदलने की कोशिश नहीं करनी है। अगर कुछ गलती है तो देख सकते हैं, उनका पर्सनली फिर वो सारी चीजें होगी। कुछ लोग सीधा लिखते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेसिव रहते हैं तो वो तिरछा लिखेंगे, कुछ लोग बैकवर्ड है तो लिखते हैं तो रहता है। कई लोगों को ये चीजें बचपन से सिखाई जाती है कि किसी से बात नहीं करना, ज्यादा मिलना नहीं है, एक्सप्रेसिव मतलब उनके एक्सप्रेशंस को दबाया जाता है, इसलिए वो लोग बैकवर्ड लिखते हैं। तो उनका वो चीज होता है कि हर एक के सामने आपको अपने इमोशंस को नहीं दिखाना है। ये प्रोग्रामिंग है, तो ये प्रोग्रामिंग जब हो गई है तो वो हिसाब से लिख रहे हैं। अगर वो खुद चाहेंगे तो फिर वो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो लिखेंगे। खाली एक दिन बोलने से नहीं होगा हर चीज की। बोलते ना, एक पेड़ जो बनता है तो पहले जब हम बीज लगाते हैं, वहां से जब वृक्ष बनता है तो उसके बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तब जाके वो पेड़ खड़ा होता है। तो अभी हैंडराइटिंग भी वैसी ही है, उनको अपने विचार बदलने हैं, उनको खुद को चाहना है तो ही वो बदलेंगे, अदरवाइज आपके बोलने से या मेरे बोलने से वो नहीं करने होते। मैं हैंडराइटिंग में चेंज सिर्फ उसी व्यक्ति को बताता हूँ हु वांट्स सम बेटरमेंट, ग्रोथ
or change in their life. अगर नहीं है, मैं उनसे पूछता हूँ, और मतलब अगर हैंडराइटिंग एनालिसिस के लिए मेरे पास आते हैं, अच्छा खासा अमाउंट पे भी करते हैं, और उसके बाद में जब वो मेरे को पूछते हैं तो लास्ट में मैं उनसे यही पूछता हूँ कि डू यू वांट सम चेंज इन योर लाइफ? अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हो तो फिर चेंज करना है. बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि लाइक कि भाई आपको ये दवा लेनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं. अगर इफ यू आर हैप्पी विथ व्हाट यू हैव, आप खुश हो, तो क्यों चेंज करना है? लेट इट बी. जब जरूरत हो तभी आ जाए. So, anyone having any more questions? Yeah, one question, sir. Sonal here. या सोनल खंडेलवाल. Yes, yes, Sonal Khandelwal. Yes. हाँ, सर मेरा बेटा है, he is 12 years and को लिखने का बड़ा आलस है, बहुत ज्यादा आलस है. I know I am somewhere responsible for this because जब वो जूनियर केजी में था तब से उसको लिखना पसंद ही नहीं था. तो टीचर ने मुझे बुला के कंप्लेन की थी कि माइट भी उसको दिखता नहीं है बोर्ड का, यू गेट हिज आईज चेक्ड. पर जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला इसकी आंखें इतनी शार्प है, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो अभी ऐसा हो गया कि नाउ इज इन 7 बट स्टिल नाउ लिखने से जी चुराता है. उसकी हैंडराइटिंग कभी कभी बहुत सुंदर आती है, कभी कभी इतना गंदा लिखेगा कि कुछ समझ नहीं आता. तो आपके पास इसका कुछ सोल्यूशन है क्या? आई नो दिस इज आई थिंक आउट ऑफ द टॉपिक. आज जो मैं पैटर्न दे रहा हूँ ना, वो पैटर्न खाली उसको प्रैक्टिस करवाओ रोज 10 से 15 मिनट. अच्छा, ओके सर. एंड आई नो आप यू विल बी सक्सेस स्टोरी. आप एक 15-20 दिन के बाद में यू विल फाइंड इट्स बेटर. ओके सर, थैंक्स अ लॉट सर. या सो दिस इज टाइम. अब मैं आपको ये पैटर्न बता रहा हूँ. So I'll take 2 more minutes before Yeah. you tell the pattern. Yeah. So anyone who would want to share a feedback of the workshop, let's hear it. Come on, we guys deserve that much, yeah. I think it's a wonderful workshop. Wonderful session, yeah. Wonderful workshop, and I think it's such an eye opener because these things, you know, especially the mother figure, father figure, we people just kind of concentrate on our children's, you know, growth and everything, but we don't realize whose role is important and where. So this has really helped, and you know, I think I'm going to go for whatever sessions you have next. I'm definitely going to go for it because I've really enjoyed this, and I think I need to work on my son's handwriting. He goes very round when he writes. All his alphabets are very round. So I think once you give me the patterns, I'll make him do that. But Great. Overall, Kaveri, good job. Thank you, Sonia. Thank you. do just be connected with us. We're going to get you a lot of stuff that is going to bring a lot of value in your And life. Zulka ji, you explained so well, so patiently. Thank you so It's much. been, yeah, thank you. And whenever you have a next session, please, I'm going to be a part of it. Yes. Thanks a lot. I would also like to thanks that it was really very informative session. It is really going to help us, and we can figure out our child's personality a little bit from the session because we need to learn a lot more from you if we want to actually analyze the child. But it was really nice to have a session like this. Thank you, sir. If you any of you want to learn, I'm just taking, because as I told, I'm not here to sell my workshops and all. Right. But from 12th onwards, मेरा drawing analysis का एक workshop है, और ग्राफोलॉजी का जो है वो वीकेंड बैच मेरा स्टार्ट होने वाला है 3rd week of this month से. So if anybody wants to join, तो मैं मैसेज कर दूंगा. Sir, I'm adding you to the group itself. आप सीधा यहीं पे सबसे बात कर सकते हैं. ओके, थैंक्स अ लॉट. और आप लोगों की ऐसे भी कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे साथ में डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विद मी. बाकी और किसी का अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ फीडबैक देना है तो दे सकते हैं. आफ्टर दैट आई विल शो यू द पैटर्न व्हिच इज स्ट्रेस बस्टर, and I am telling you the benefit of this. It has been observed because ये pandemic period है. मैंने भी कई लोगों को दिया, काफी सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें की. Even I personally do this. अभी कुछ दिनों से वापस मैंने बीच में कर रहा था, लेकिन बीच में ब्रेक हुआ था, but I again started
डूइंग दिस, क्योंकि बोलते ना लोगों को गुड़ बांट रहे हैं और खुद ही नहीं खाएंगे तो क्या फायदा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एक तो स्ट्रेस बस्टिंग में बहुत काम देगा, आपको कामनेस देगा, मेडिटेटिव स्टेट देगा, और इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि जो लोग इसको रेगुलर पैटर्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। लाइक अगर आप इसके पैटर्न को बनाने से पहले अगर आप अपना ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नाप लो और इसको बनाओ, आप 10 मिनट प्रैक्टिस करो, उसके बाद में अगर आप ऑक्सीमीटर से इसको नापते हो तो इसमें काफी सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है। तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, गारंटीड। ये इस तरह का पैटर्न रहेगा। ये आप देखेंगे, इसको मैंने यहाँ ऊपर से शुरू किया है, स्टार्टेड फ्रॉम अपसाइड, और यहाँ पे एंड भी ऊपर ही हुआ है। इनिशियली आप इसको चाहे तो लाइनिंग वाले उस पे यूज कर सकते हैं, बाद में धीरे धीरे इसको प्लेन बुक पे करना है। एक पेज आपको करना है लाइनिंग में। अगर आप ऊपर, और इसमें अगर एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला जो है ये थोड़ा सा छोटा है और नीचे वाला ये थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। Sir, I have taken. I'm sharing on the group also. Great, great. That will be much better. ग्रुप में। So this pattern जो है ये आपको भी करना है, बच्चों को भी करवाना है। दिव्या जी आप भी बोल रहे थे ना, जो दूसरा वाला है उसको भी आप इस चीज को करवाइएगा, उसको प्रैक्टिस। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। yes. तो दिस विल हेल्प हिम माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए, स्मूथनेस। और इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, इफ समबडी इज, आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको थोड़ा डायबिटीज वगैरह है या ब्लड प्रेशर का कुछ इश्यूज वगैरह है, टेल देम टू प्रैक्टिस दिस रिलीजियसली। विश्वास करके इसको आने वाले 90 डेज तक आप प्रैक्टिस करो। बाद में भी आगे कंटिन्यू रखना है, बट लाइक इट्स योगा जैसे करते हैं ना उसी तरह से, लेकिन इसको प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे लोगों को किया है ना। लेकिन कोई भी दवा वगैरह जो भी चल रही है उसको बंद नहीं करना, जो भी इलाज वगैरह चल रहा है उसको एज इट इज चल रहे हैं, उसके साथ में इसको एक एडिशनल ये करना है। इट विल गिव यू कामिंग इफेक्ट। लाइक अगर आप अभी, अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप 1-2 मिनट आप इस चीज को बना के देखिए, यू विल इंस्टेंट, बोलते ना अभी करो अभी मिलेगा, अभी करो अभी मिलेगा, ऐसी वाली बात है। राइट नाउ, राइट हियर। Okay, I'll quickly take this time again to remind कि ये तो एक पैटर्न था, अभी बहुत सारे पैटर्न्स मिल सकते हैं और but उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। Exactly. So you guys have to put your story, take a photo of the workshop. If you have not taken, you can still take it and share it on your profiles, on your social media, tag us, and you are going to get a lot of such patterns, not only for yourself but for your kids as well. Secondly, जो 3 बेस्ट क्रिएटिव स्टोरीज होंगी उनको सर की तरफ से एनालिसिस भी फ्री मिलेगा, मुफ्त। Go ahead, sir. I'm sorry to have cut you off. नहीं, वो मैं बोल रहा हूँ, आपको ये, आपकी बात को ऐड कर रहा था मैं। That pattern will be very very important patterns for the development of your child, है ना। तो वो पैटर्न्स मैं दूंगा, अगर वो पैटर्न बनाएंगे, you can create lot many success stories in your family. अरे वाह अश्विनी जी, how are you? I'm good. नमस्ते सर जी। आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया। हाँ, हैंड रेज किया, पूछना नहीं है मुझे, खाली अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। कोई भी प्लेटफॉर्म एक मिनट पहले मैं बता देता हूँ आपके बारे में थोड़ा सा। शी इज अश्विनी चौमाल फ्रॉम नासिक एंड उनका विशेष करके उनका बेटा भी है और ये नासिक में रहती है और नासिक से मुंबई आके मेरे पास उन्होंने ग्राफोलॉजी सीखा था और उन्होंने बहुत सारी चीजें मिरेकल्स अपनी पर्सनल लाइफ में भी किए हैं और लोगों को भी हेल्प किए हैं। एंड सी इज, बोलते हैं ना, मैराथन रनर और क्या बोलते हैं माउंटेनियर और क्या क्या चीजें करती रहती हैं। मेरे को लगता है एक लाइफ में आदमी क्या क्या कर सकता है, ये अगर कुछ सीखना है
तो अश्विनी चौहान इज द बेस्ट एग्जांपल कि मतलब एंटरप्रेन्योर भी है, मदर भी है, एंड बहुत सारी चीजें वो करती रहती है। या यू कैन। थैंक यू सो मच सर, इतनी तारीफ की आपने। लेकिन मैं जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं सिर्फ उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि सर जालूका सर जी को मैं करीब 4 साल से जानती हूँ, 4-4.5 साल से। उनसे मैंने ग्राफोलॉजी पहले एनालाइज करवाई थी अपनी हैंडराइटिंग, फिर उनसे सीखा और बहुत कुछ सीखा। एंड आई टेल यू कि मैंने मेरे लाइफ के पिछले कुछ 3-4 साल के जो मेजर लाइफ लेसन्स हैं वो उन्हीं से सीखे हैं। ग्राफोलॉजी की बहुत मदद मिली है मुझे टाइम टू टाइम, क्योंकि बीइंग अ सिंगल मदर मेरे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स काफी आए हैं। तो कभी भी मौका मिलता है तो मैं अपनी हैंडराइटिंग बैठकर थोड़ी सी एनालाइज कर लेती हूँ। कहीं भी मुझे कुछ रेड फ्लैग्स नजर आते हैं तो मैं थोड़ी सी अवेयर हो जाती हूँ। थोड़ा कुछ लगता है गाइडेंस तो मैं सर जी को फोन भी करती हूँ, इनको बता भी देती हूँ कि सर ऐसा कुछ माइनर सा चेंज आया है हैंडराइटिंग में, तो ये मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। डिस्पाइट आई नो मुझे पता होता है क्या करना चाहिए, लेकिन एक जो इनसे जो एक रीअश्योरेंस मिलता है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रही हूँ कि ग्राफोलॉजी, और मैं इनके जितने भी रिफ्रेशर कोर्सेस होते रहते हैं वो करती रहती हूँ, क्योंकि हर बार कुछ नया इनसे पता चलता है, क्योंकि इनका भी एक्सपीरियंस काफी बढ़ रहा है और जितना करते रहेंगे उतना नया नया कुछ सीखने मिलेगा। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रही हूँ कि दिस डेफिनेटली हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल इन माय लाइफ एंड इन माय पर्सनालिटी आल्सो। सो जस्ट वांटेड टू थैंक यू सो मच सर जी, आपका हाथ मेरे सर पर है, तो यस आई एम रियली ग्रोइंग एज अ पर्सन। थैंक्स अ लॉट। विथ योर परमिशन इफ यू वांट, मैं वो आपकी कलीग वाली बात शेयर कर सकता हूँ? श्योर श्योर प्लीज। सी दिस इज व्हाट मतलब ग्राफोलॉजी कहाँ तक काम करती है आपकी प्रैक्टिस पे है। इनकी एक कलीग थी और जिसकी हैंडराइटिंग देख के उन्होंने बोला था कि वो आप कुछ दिनों में मदर बनने वाले हो करके। यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, दैट वाज। और हाँ, तो उसके बाद में उसको खुद को भी नहीं पता था, एंड 4 महीने बाद में इनका मैसेज आया मेरे पास कि सर मेरी एक कलीग को मैंने ऐसे बताया था एंड नाउ शी इज प्रेग्नेंट फॉर 5 months। हाँ, तो राइट दैट वाज वेरी अमेजिंग, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस इनको हुआ। तो देन दैट टाइम आई टेल्ड कि नाउ यू बिकम अ सुपर वुमन, तो शी सेड नो इट्स बिकॉज़ ऑफ यू। तो इट वाज नॉट बिकॉज़ ऑफ मी, इट वाज बिकॉज़ ऑफ दिस साइंस। इसको आप जितना ज्यादा आप डीप समझ सकते हो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड बहुत सारी चीजें की है। देयर आर सम एंटरप्रेन्योर्स जिनको मैंने हेल्प किया, दे वर फाइनेंशियली मतलब उनका कोई चैलेंजेस थे उसको हेल्प किया। कुछ लोगों के रिलेशनशिप के जो इश्यूज थे उसमें बहुत सारे चीजें की। कुछ लोगों का पर्सनल इमेज, सेल्फ इमेज इतना डाउन था कि बहुत अच्छा खासा एजुकेटेड होने के बाद में भी दे वर लिविंग लाइक अ वेरी मतलब बोल नहीं सकते कि इतना वो रह रहे थे। नाउ उनकी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी है एंड दे आर गेटिंग रेस्पेक्ट एज वेल एज फाइनेंशियली काफी उनको बेनिफिट भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो होती है, बस थोड़ा सा हैंडराइटिंग को समझ के उसको छोटा सा चेंज करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। Sir, even I'll take a bit of moment here. अश्विनी जी की बात को ही मैं ऐड करूंगी। उनको आपके साथ शायद 4 साल हुए हैं, मुझे आपके साथ शायद 4 हफ्ते हुए हैं, बट I agree with her every point. You as a mentor have changed my perspective as well. और इसीलिए मुझे लगा था कि मैं अपने आसपास क्यूरिगन्स के थ्रू सबसे I should introduce you. And really thankful. मेरा गला भर आया, मैं और नहीं बोल पाऊंगी. Thank you so much. Hi, sir. Yeah. Hi. Who's this? Hi, sir. Lavika this side, sir. Yeah, Lavika. So thank you for such an interesting session. I just have one query regarding the pattern you have just given. Yeah. The pattern you have given has ample of space between each figures, but when I am making it, it is very closely done. So, is it possible that this is wrong and what you have given is right? No, I need to make. In graphology, there is nothing wrong, nothing right. Everything is thought process. So, as of now, you must be feeling a bit stressed, or your thought process. You must have lot many thoughts at a time. Yes, quite possible. हाँ, तो बहुत सारी चीजें हम जब बहुत सारे थॉट्स एक साथ में आ रहे हैं तो हमारे जो
लेटर्स होते हैं वो बहुत क्लोज आ जाते हैं. दिस वाज अगेन So, no, which is the correct form? One with the ample of space. If I make my kids practice this, then I should make them. थोड़ा सा अगर स्पेस रहेगा तो अच्छा, because they should be like open to learn ना. अगर Yes, थोड़ा yes. सा स्पेस रहेगा तो they should This be is open. what I made. This is what I made, and this is closely done. And your handwriting had space between it, so that is the correct one. That is to be practiced, right? Exactly. थोड़ा सा स्पेस रहेगा तो अच्छा है. तो that will have like उनको बराबर से बनाने का, और थोड़ा सा स्पेस रहेगा तो they'll have a like open mindedness to learn, because उनका जो फेज है वो लर्निंग का है. अगर बच्चों का जो है लर्निंग का है तो थोड़ा सा ओपन माइंडनेस रहना चाहिए, तो वहाँ पे स्पेस आते रहेगा, है ना. Okay, thank you, sir. So anything else or anyone else who has any question? Because we are running out of time now, and we have to close by 5:45. Exactly. Any because questions? I have another session. Yes. Okay, so let's just close for today then. Just in case you have any questions, you can always put on the group. I've opened the settings, and because sir is also there on the group now, so you can directly interact with him. Thank you so much, sir, and thank you everyone to have joined us. Just one minute, because मेरा जब भी कोई इस तरह का सेशन होता है, I end this with a prayer. तो मैं एक प्रेयर आप लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ. मेरे लिए आप लोग बहुत अच्छे ऑडियंस रहे, तो मैं भी आप लोगों को अच्छे से कुछ सिखा पाया हूँ. And I thank you all, and I pay my sincere gratitude to all. जो भी मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, because I am here because of my gurus and my parents. तो उनके वजह से मैं जो फिर भी कर पाया हूँ आपकी लाइफ में. अगर मैंने कुछ भी ऐड किया तो इट्स बिकॉज ऑफ दैम. एंड मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब चीजें हासिल करें. विद दैट, थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone. A lot of gratitude to everyone for having the taken out time and be with us today. Thank you so much. Thank you, Kaveri. Thank you, Julka ji. It was a pleasure. Thank you, sir. Everyone. Thank you.